Myself, R.P. Bhardwaj, convener of Srinagar Study Circle, welcome all the participants in today's seminar. Today, we shall discuss a very important topic, accounting standards for SMEs. It will be taken up by CA Jagjit Singh Jags. He is a chartered accountant and deputy convener in Srinagar CP Study Circle. The speaker has already joined the webinar. A warm welcome to you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Request our founder convener R.K. Gupta ji to kindly formally introduce the speaker and carry on the seminar further. It is over to you, R.K. Gupta ji. Thank you very much, R.P. Bhardwaj ji, convener of Srinagar Keshapuram CP Study Circle. Today we have with us CA Jagjit Singh Jags ji. He graduated in Commerce from Delhi University in the year 1998. Passed his chartered accountancy in May 2008. Besides that, he has done various certificate courses on concurrent audit, forensic accounting and fraud detection, GST, and anti-money laundering. He has been a regular forum in various. He has been a regular speaker in various forums, and particularly he deliberates on the field of soft skills, accounting standards, professional ethics, income tax, DVAT, service tax, GST, outcome of budget, forensic, bank audit, and other many areas in the various branches of northern and central region of ICAI. He is also a GST trainer in the training house of Office of the Director General of Audit, Delhi. He was awarded as Best GMCS Faculty Award of NIRC of ICAI in the year 2015. He has already given various presentations in various seminars of schools, colleges, universities, and study circles like ICAI, CP study circles, MBA institutes, and IP University, etc. He has also given presentations in webinars also during this lockdown and pandemic. So with such an illustrious background and being associated with Shastrinagar CP Study Circle, which is one of the finest study circles because they arrange so many seminars, and he is a deputy convener in Shastrinagar CP Study Circle. So definitely he is well aware about the main function of NIRC, which is dissemination of information and education amongst members and students. He has volunteered to serve the profession as a regional council member and is likely to put up his candidature very soon. We wish him best of luck in all his future endeavors. With this, over to Jagjit Singh Jags. Thank you, sir. Thank you for this. The words which you have mentioned about me are related to the introduction part. So the nice, the words given by you, Gupta sir, and thank you, Bhardwaj sir, to both of you actually for the wonderful opportunity again in the study circle, Srinagar Keshapuram CP Study Circle. So yes, of course, Gupta sir, I'm trying my level best. Whether I'm working as a deputy convener, and with my planning is in the coming election, coming as a candidate for the NIRC. So with a great warm blessing from all the members from your side. So today I would say it's another opportunity in this study circle, and the topic is different because last time when I came in the study circle, the topic was faceless assessment, under the Income Tax Act. So today we are going to discuss the accounting standard for the SME, for the small medium the enterprises है उसके लिए जो study circles हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है. It's a very relevant, very important topic. So what are the conditions? So कहाँ पर कौन से accounting standard applicable है, कहाँ पर exemptions हैं, कहाँ पर disclosure exemptions हैं. So वो सारी चीजें जितनी भी हैं important things हैं today we will discuss in this webinar.
and we have like 4 to 6 the time period. So already 12 minutes are already over. So we have rest of the time and will not waste another 1 minute for the further, like, you know, the other discussion. So we directly, you know, talk to the like start the topic which I have already prepared for the benefit of this member. So, you know, this is the working which I have completed for the members. That's a more than 50 pages. तो इसके ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वायरमेंट जो है, जो अभी 31 अगस्त 2020 में इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हैज रिक्वेस्टेड टू द मेंबर्स, द रिस्पेक्टेड मेंबर्स, and request to fill the questionnaire on the simplification of the accounting standard for the micro and small non-company entities. जिसकी लास्ट डेट थी, जो एक्सटेंडेड डेट थी, दैट वाज 31 अगस्त 2020, जिसमें इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने और इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 CPRs अनस्ट्रक्चर आपको क्रेडिट देना था अगर आप इसके ऊपर इसके क्वेश्चनर को फिल करते और उसको सिंपलीफाई करने के लिए अगर उसमें आप कुछ अपना इनपुट देते. सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू क्रिएट एंड टू सिंपलीफाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द SME. बट आई डोंट नो कि कितने मेंबर्स ने उसमें अपना इनपुट दिया है, अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है. सो आफ्टर शेयरिंग, यू नो, जिन्होंने शेयर किया उसके बाद, सो आउटकम जो है, द आउटकम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द SME, सो लाइक दिस. इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ एक बुक भी उसमें, यू नो, रिलीज की गई है जिसमें टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो SME से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें कंडीशंस हैं. In that condition, so there are some different limits are there. 250 crores limit, 50 crores limit, 10 crores limit, 2 crores limit, borrowing की लिमिट है, उसमें टर्नओवर की लिमिट है. वो अभी बस हम डिस्कस करने वाले हैं उसको डिटेल में. And I will try my level best so that each and every member those are present in this webinar can understand, even they can apply very easily. तो मेरा मकसद यही रहेगा कि 6 बजे तक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो SME के लिए जो कंडीशंस के साथ है वो सब क्लियर हो जाए. बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, बट कहाँ कौन कौन से SME के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले. सो पहली बात थी सर्वे की. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो सर्वे चलाया था उसका बेनिफिट कितने मेंबर्स ने उठाया आई डोंट नो, बट यस, जो आउटकम आया उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग नंबर 268. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपनी 268 मीटिंग जो, यू नो, 1 फरवरी 2021 को हुई, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया क्लासिफिकेशन फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द SME. रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने इंटरनेशनल, उन्होंने इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हुई. सो इस मीटिंग में जो मीटिंग हुई 268, उसमें उन्होंने IFRS के ऊपर भी डिस्कशन किया, इंडियस के ऊपर भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस उन्होंने, यू नो, आगे प्रपोज की. एंड यू नो द सेकंड पार्ट में उन्होंने रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर भी बहुत सारे प्रपोजल डाले, जहां पर उन्होंने लिखा है कि द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसिडर्ड द मैटर रिगार्डिंग द रिवीजन इन द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कंपनी एंटिटीज. तो वहां पर उन्होंने उसके क्लासिफिकेशन जो थी उसकी एप्लीकेबिलिटी की रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ द क्राइटेरिया, उसको रिवाइज करने के लिए उन्होंने बात की for the applicability of the accounting standard and recommended classification into following 4 level. उस मीटिंग में उन्होंने प्रपोज किया 4 लेवल के एंटिटीज को, जहां पे फर्स्ट लेवल में उन्होंने कवर किया जिसको हम बोलते हैं लार्ज नॉन कंपनी एंटिटीज. सेकेंड लेवल में द मीडियम साइज नॉन कंपनी एंटिटीज, यानी कि उन्होंने 4 लेवल पे किसको डिवाइड किया. फर्स्ट लेवल फॉर द लार्ज entity, second for the medium, third for the small, and the fourth for the micro. तभी इसका हमने जो नाम रखा, यू नो, MSME हम उसे बोलते हैं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज. बट जो लार्ज है, फर्स्ट लेवल की केस में जो कंपनीज हैं जो फर्स्ट लेवल में आती हैं, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं. all the accounting standards are applicable for the first level entity. But when we talk about the level 2, level 3 and level 4, right, level 4 entities, there are some exemptions. There are some exemption in the disclosures.
कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो लेवल 2 में कंपनीज को, एंटिटीज को लगते नहीं है, लेवल 3 को नहीं लगते, लेवल 4 को नहीं लगते। कुछ ऐसी एग्जाम्पशंस हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं, दोस आर नॉट मैंडेटरी फॉर द लेवल 2 लेवल 3 एंटिटीज। सो वो सारी चीजें जो डिस्कस हुई, जो सारा उसको फ्रेमवर्क किया गया, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किए गए उस मीटिंग में, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डिसाइडेड टू प्लेस द अफोरसेड रिकमेंडेशन बिफोर द काउंसिल फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। अप्रूवल में डाल देंगे। और ये मीटिंग कब हुई? 1 Feb 2021। उसके बाद जो अप्रूवल होने के बाद आउटकम आया वो हमारे सामने है। बट अगर इससे पहले मैं बात करूं, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये जो सिलसिला फॉर द एसएमई जो चल रहा था, ये बहुत पुराना चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, और उसमें बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं। तो व्हाट आर दो डिस्कशन? पहले इसको हम मोटा मोटा एक बार लेके चलते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां से स्टार्ट हुआ। अगर आप इसका, हाँ सर मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। आई विल टेक अनदर 1 मिनट। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज दैट वाज हैपेंड इन द जुलाई 19 मैं टेक्निकल थी, मैं ये कहा था। सुनील सर के, सुनील सर आपसे रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट करें। मेंबरशिप सुनील गोयल जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस कर लिया सर, कर लिया। मुझे लगा शायद वो मेरे से पूछने के कब की बात है, तो मुझे लगा कि मुझे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना है, बट वो फोन पे जो बात कर रहे थे किसी से, वो कहीं और कब की बात पूछ रहे थे। सुनील गोयल जी चलिए। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द नॉन कॉर्पोरेट कंपनी, सो दैट वाज हैपन इन द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 1990। जुलाई 1990 में पहली बार इसको जो डिस्कस किया गया, एंड इशू ऑफ द जर्नल एंड द काउंसिल हैड नोटिफाइड इट डिसीजन टू मेक द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2091। यहां से इसको स्टार्ट किया गया। जुलाई 1990 में डिस्कशन हुआ और कोशिश की गई कि इसको 1 अप्रैल 1991 से स्टार्ट किया जाए, जिसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करता है, एंड अनदर वन वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 AS7 which talk about the construction, जो कॉन्ट्रैक्ट है, AS8 which talk about the research and development, AS9 revenue recognition. These are the basically the basic accounting standard वो जो सभी में एप्लीकेबल होने चाहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट रहती है। AS10 अकाउंटिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जुलाई 1990 में, और इसको एक्सपेक्ट किया गया कि 1 अप्रैल 1991 से इसको जो है एप्लीकेबल कर दिया जाए। उसके बाद फिर इसमें कुछ और उतार चढ़ाव आए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 7, 8, 9, 10 and 11 should be mandatory in respect of the accounts for the period beginning on and after 1 अप्रैल 1991 for the companies governed by the Company Act 1956। अब इन्होंने क्या कर दिया कि फॉर द कंपनीज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट 1956, ये उसमें कंडीशन आ गई कि जो 1956 एक्ट जो है कंपनी एक्ट 1956, वहां पे जो कंपनीज हैं उनके लिए इसको एप्लीकेबल कर दिया जाए फ्रॉम 1 अप्रैल 1991, as well as for the other enterprises except the following. Now Gupta sir, this point is very important, except the following. कंपनीज के लिए तो कर दिया, कंपनीज those are registered under the Company Act 1956 from 1 April 1991, बट एग्जेम्पशन में कौन कौन से, एग्जेम्प्ट में कौन कौन है, एक्सेप्ट कौन कौन से? वेरी फर्स्ट वन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल फॉर्म, सेकंड वन वाज द पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तीसरा सोसाइटी को एक्सेप्ट उसमें डाल दिया है। फोर्थ वन वाज ट्रस्ट, ट्रस्ट को भी इसमें कवर नहीं किया गया। फिफ्थ वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, and the association of person was the sixth one, the last one. So 6 ऐसी entities, sole proprietorship, partnership firm, societies, trust, Hindu undivided family and association of person, इन 6 को एक्सेप्ट में डाल दिया गया। बाकी जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं कंपनी 1956, अदर दीज 6 पॉइंट्स, सबके ऊपर 1 अप्रैल 1991 से इसको लागू करते। आगे चलते। उसके बाद उन्होंने बोला कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज लिस्टेड अबाउ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने पहले बताया शुड बी मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम
बिगिनिंग ऑन एंड आफ्टर, उसके बाद एक डेट और आई कि 1 अप्रैल 1993 से भी इसको उसमें एक और डेट डाल दी उन्होंने. एंड द स्टैंडर्ड ऑन द अकाउंटिंग मैटर शुड कंटिन्यू टू बी मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट्स ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस. ऑल द एंटरप्राइजेस मींस टॉकिंग अबाउट अबव. बट अब इसमें जो धीरे धीरे इसमें जो चेंजेस आते गए, तो वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट. अब इसको 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1993 in respect of the following. Number 1, the sole proprietorship, partnership, firm, society, trust, Hindu undivided family, association of person, इसको भी उसमें कवर कर लिया गया. बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो बोली है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि इनको क्यों कंसिडर किया. So the matter was reconsidered by the council at its meeting held in September 1993, क्योंकि उसको बोला गया कि 1 अप्रैल 1991 से एप्लीकेबल है, बट 1 अप्रैल 1993 में इसको रिकंसिडर किया गया और सितंबर 1993 में दोबारा इसको सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने रिकंसिडर किया. एंड उसके ऊपर क्या डिसीजन आया? इट वाज डिसाइडेड इन द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर डिसीजन. अर्लियर डिसीजन मींस द डिसीजन टेकन इन 1990 एंड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1991, दैट द अफोरसेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 वगैरह जो उसमें उन्होंने लिखा है, और उन्होंने बोला है अबव फॉर द पीरियड बिगिनिंग ऑन एंड आफ्टर 1993. बट द पर्पस क्या था उसके बीच में? उन्होंने कहा कि इट में reiterated that the institute issued accounting standard for the use of presentation of the general purpose financial statement. This point is very important. If your financial statement of the company is considered for the general purpose financial statement. Now what is general purpose financial statement? एक क्लाइंट की एक बैलेंस शीट है जिसको लोन के लिए बैंक को दिया गया. अब बैंक उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया है. साइंड बैलेंस शीट प्रेजेंट की गई बैंकर के सामने, और बैंक उसके ऊपर लोन के लिए एप्लीकेशन आई और लोन डिस्बर्स करेगा. एक इन्वेस्टर है जिसने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एंड ही इज लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा, टू अंडरस्टैंड द टर्नओवर, टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, टू डिसाइड how much amount I have to invest in that company. So like the general purpose financial statement, where the statement, where the investor, where the bankers, where the regulatory authority, where the department, where the government department, where the other institution, they are looking for the information to decide to take some decisions. So that is called the general purpose financial statement. अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कंसिडर किया जा रहा है या जाएगा, तो 1 अप्रैल 1993 उसमें इसको भी इंक्लूड कर दिया. प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को, सोसाइटीज को, ट्रस्ट को, ये सब उसमें इंक्लूड. आगे क्या कहते हैं? इश्यू टू द पब्लिक बाय सच कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइजेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ a test function of its member. General purpose के लिए with the help of a test function by the member of this institute, the member of ICI. The term general purpose financial statement includes, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अटेस्ट किया फॉर द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, टू कंसिडर, टू टेक द डिसीजन, like for the investment, for the loan disbursement or some other decision includes. So what are those documents? Very important documents to consider in the general purpose financial statement. The very first one is balance sheet, the statement of profit and loss account, and the other statement and the explanatory notes which form part thereof. आज हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के पीछे शेड्यूल्स लगाते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट लगाते हैं, which is considered as a part of this the financial statement. अब कोई ऐसे स्टेटमेंट्स के पार्ट हैं, एनेक्सर्स हैं, शेड्यूल्स हैं, दोस आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई किया, और वो साइंड बैलेंस शीट जब बैंक में जाती है, साइंड बैलेंस शीट जब इन्वेस्टर के पास जाती है, साइंड बैलेंस शीट जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाती है, सो वो बैलेंस शीट कंसिडर की जाती है फॉर द जनरल पर्पस. जब ये जनरल पर्पस में कंसिडर हो रही है, then there is a mandatory requirement for the accounting standard, applicability of the accounting standard. वहां से फिर इसको 1 अप्रैल 1993 में ये नई चीज सेंट्रल काउंसिल मेंबर, हमारे रिस्पेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने इनको रिकंसिडर किया और इसको भी इसके ऊपर एप्लीकेबल. नेक्स्ट मूव करते कहते हैं, इन सच ए केस द ऑडिटर शुड आल्सो एग्जामिन वेदर दोज
provisions of the accounting standard which are applicable in the context of the basic of accounting followed by the enterprises have been compiled with or not and considered making suitable disclosure qualification in his audit report accordingly. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर we have a different responsibility, different accountability on our shoulder because we are working as a practicing chartered accountant. When we are signing any document now, we have the requirement, the liability of the chartered accountant, responsibility of the chartered accountant to generate UDIN. आज हमारा डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ आइडेंटिफाई हो सकता है वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ जनरेटेड यूडिन जो हमने जनरेट किया हुआ है, राइट. सो वो सब चीजें मार्केट में हैं, हम उन चीजों को हमने इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना है. जब भी हम अटेस्ट फंक्शन करते हैं, तो मैंने 1 अप्रैल 1993 का जो वर्ड बोला अटेस्ट फंक्शन, अगर आप अटेस्ट फंक्शन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, द साइनिंग प्रोफेशनल जो साइन कर रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंसेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग द बैलेंस शीट, यानी कंपाइलिंग में जो उस बैलेंस शीट को बनाकर आप फाइनल करते हैं, उसको साइन करते हैं, देन देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट एंटिटी must comply all the applicable accounting standard and the balance sheet must be prepared with the help of the applicable accounting standard and disclosure as required. उसी हिसाब से वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर भी होने चाहिए. So this is the duty of the management, yes, but the duty of the practicing chartered accountant जो उसको attest function करता है. फिर इसके बाद एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आया जो इसमें लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल में, कहते हैं मैंडेटरी एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ऑडिट. एक कंडीशन ये भी, एक तो मैंने बताया वो 1 अप्रैल 1991 वाला, तो जिसमें उन्होंने इन चीजों को एग्जेम्प्ट किया वो 6 पॉइंट को. फिर उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया, रिकंसिडर किया कि अगर वो जनरल पर्पस के लिए उसे कंसिडर किया जाता है तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है. एक चीज यहाँ पर ये आ गई कि मैंडेटरी एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सभी को पता है कि अकाउंटिंग हमें अगर इनकम टैक्स में ऑडिट करना है, इनकम टैक्स में 1961 में टैक्स ऑडिट करना है अंडर सेक्शन 44AB, तो ऑब्वियसली हमें रिपोर्ट करना है, और जब हमें रिपोर्ट करना है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अटेस्ट करना है. व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अटेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, there is a duty of the chartered accountant to maintain, to comply with the applicable accounting standard. और बैलेंस शीट को भी उसी तरीके से बनाना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोविजन एंड डिस्क्लोजर दिए गए. अभी मैं वापस उस पे आऊंगा. अभी मेन मुद्दा जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंपनीज एंटिटी जो है उसके ऊपर आऊंगा. उसमें लिखा गया इट इज hereby certified that the mandatory accounting standard also apply in respect of financial statement audited under section 44AB of the Income Tax Act 1961. Accordingly, the member should examine compliance with the mandatory accounting standard when conducting such audit. हमें पता है कि अटेस्ट फंक्शन में जो अटेस्ट करने वाले प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है. अभी मैं नफरा की भी बात करूंगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब भी बात आती है नफरा का रोल आता है उसमें. सो नफरा का क्या रोल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, मैं अभी थोड़ी देर में बस आई विल टॉक अबाउट दिस द नफरा पार्ट. सो उसमें बोला है कि स्टेटमेंट जो ऑडिटेड, जहां पर अकाउंटिंग जो अंडर सेक्शन 44AB में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको अटेस्ट करेगा, द मेंबर शुड एग्जामिन कंप्लायंसेस विद द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हेन कंडक्टिंग द ऑडिट. ऑडिट होगा जर्नल पर्पस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी. एक मुद्दा और इसमें है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे एक चीज एक मैं छूट गया वो बताता हूँ. कहते हैं मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो है, इंस्टीट्यूट क्या कहता है, द काउंसिल डिसाइडेड द फॉलोइंग स्कीम फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द SME. द स्कीम comes into effect in respect of accounting period commencing on and after 1/4/2004. जो मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए जो स्कीम आ रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी तो 1/4/1991, बट जो मीडियम साइज के लिए जो आ रही है वो आ रही है 1 अप्रैल 2004 को काउंसिल ने डिसाइड किया. फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
enterprises are classified into 3 category. जब फर्स्ट टाइम इसको enterprises को classified किया गया, so that was happen in the year, the date was 1st April 2004 when the council has decided and classified it to level 1 company, level 2 company, level 3 company. और अब जो लेटेस्ट आए हैं उसमें level 4 कंपनी भी है, 4 एंटिटीज भी, पहले उसको 3 में डिवाइड किया, राइट। सो वो पुरानी चीजें थी, पुरानी लिमिट थी, उसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अब जो लिमिट आ गई है वो 250 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ वो लिमिट है, वो मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट द एवरी member at present this in this webinar can understand and keep in mind the applicable the limit. Now एक और पॉइंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एग्जम्पशन रिलैक्सेशन फॉर द एसएमई। ये तब भी डिसाइड हुआ 1 अप्रैल 2004 को भी डिसाइड हुआ कि कौन कौन सी ऐसी एग्जम्पशंस एंड रिलैक्सेशंस हैं। सो फॉर द इंस्टीट्यूट हैज इशूड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स एंड एग्जम्पशन रिलैक्सेशन फॉर द एसएमई आर एज फॉलोज। अब उसमें कौन कौन सी एग्जम्पशंस, कौन कौन सी वो चीजें थी वो उसमें लिखा हुआ है, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट वाली पढ़नी है, पुरानी वाली नहीं पढ़ेंगे, नई वाली याद करेंगे, बट पुरानी वाली में मुझे एक चीज बतानी है, द ओल्ड क्लासिफिकेशन में जो प्रीवियस लेवल 1 कंपनी थी वो क्या थी, उसको एक बार समझ लेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट रिपीट होगा नई वाली की जब मैं बात करूंगा। जो नोटिफिकेशन आई है एमसीए से, जो जून 2021 में जो आई है, वो भी इसी की बात करेगी। चलते हैं अभी बात, लेवल 1 इंटरप्राइजेस में कौन कौन सी इंटरप्राइजेस को कवर किया गया, इसको अब ध्यान से सुनना है सर। मैंने बात कर रहा हूं जुलाई 1990 से स्टार्ट किया था मैंने, फिर 1 अप्रैल 1991 पे गया, फिर 93 पे गया, फिर 2004 में आया, अब 2004 का लेवल 1 इंटरप्राइजेस में क्या क्लासिफिकेशन था, अब मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते रहे सर। लेवल 1 enterprises, the enterprises which fall in any one or more of the following category, या तो कोई एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन में अगर वो फॉल करती है, तो at any time during the accounting period means 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2021 तक, any time during the financial accounting period, ये नहीं कि इसको मैं 31 मार्च 2021 में देखूंगा, चेक करूंगा, नहीं सर, उसको टेस्टिंग करने के लिए वी हैव द पीरियड एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि पीरियड अकाउंटिंग पीरियड हो गया, पिछले साल की बात करें तो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, यहां तक इस पीरियड के बीच में कभी भी अगर उसने एक कंडीशन या एक से ज्यादा, एनी वन और मोर, चलिए, आर क्लासिफाइड एज अ लेवल 1 enterprises, अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली या एक से ज्यादा कर ली ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, एनी टाइम, तो वो लेवल 1 कंपनी, ठीक है जी। अब कंडीशंस क्या, नंबर 1, enterprises whose equity or debt security are listed whether in India or outside India। सबसे पहली कंडीशन दिमाग में बिठा ले, अगर उस इंटरप्राइजेस के इक्विटी शेयर्स या डेब्ट क्या है, लिस्टेड है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो बाहर है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्लाइंट है जिसके इक्विटी या उसके डेब्ट सिक्योरिटी जो है वो लिस्टेड है, बस लिस्टेड आप समझ लीजिए, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड वो अनदर चीज है, बट लिस्टेड है तो वो लेवल 1 कंपनी आ गई, यानी कि इस केस में आपके उस क्लाइंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई एग्जम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि लेवल 1 कंपनी में जो भी एंटिटीज आएगी कंडीशन के हिसाब से उसको रिलैक्सेशन एग्जम्पशन कुछ भी नहीं है, there is not a single relaxation and exemption in the case when your company exists or enter in the level and treated as a level 1 enterprises। चलिए दूसरी कंडीशन, enterprises which are in the process of listing their equity shares or debt security as evidenced by the board of director resolution in this regard। इस कंडीशन को ध्यान से सुनना सर, enterprises which are in the process of listing, अब वो process of listing में है, बट हम कैसे मान लें process of listing में है कि उसके इक्विटी शेयर्स या डेब्ट सिक्योरिटी प्रोसेस इन लिस्टिंग में है, कैसे मान लें, तो उन्होंने बोला है कि एज एविडेंस बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर रेजोल्यूशन, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन है और उसमें क्लियरली मेंशन है
that the enterprises in the process for listing their equity share as well as or maybe the debt security, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन में मेंशन है, it will be treated as a level 1 enterprises. सारे के सारे accounting standard applicable. I think 2 conditions are clear. Now move to the third one. Third one is the bank. अगर बैंक है तो सारे accounting standard applicable. साथ में उन्होंने लिखा है including cooperative banks, ये भी कवर हो. फोर्थ वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें कवर. इंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस. इंश्योरेंस सेक्टर्स में रिलेटेड कई कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस के काम करती हैं, इंश्योरेंस एक्टिविटीज करती हैं, राइट. तो ऑल आर कवर इन द लेवल 1 कंपनी. सिक्स्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने. ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस. पहली कौन सी? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल and the business reporting enterprises. Business reporting enterprises, ध्यान से सुनते जाना सर. The words are very very important. Each and every word is very important to understand the applicability of the accounting standard in the case of SME. एक भी condition satisfy होगी the level 1 enterprises, and level 1 enterprises अगर वो उसमें आ गई, सारे accounting standard applicable. चलिए. Whose turnover for the immediately preceding accounting period on the basis of audited financial statement. अब ये ध्यान रखें सर, the word is audited financial statement. Unaudited balance sheet के बेसिस पे मत लेना सर. अगर आप उसके लिमिट, टर्नओवर के लिमिट को चेक करना चाहते हैं, so always try to check the limit of turnover, but evidence क्या होना चाहिए? There must be an audited financial statement. Audited financial statement. अब वो लिमिट यहाँ पे 50 करोड़ है, ये पुराने वाली, मैं नई वाली पे आऊंगा जो 250 करोड़ वाली. तो अभी यहाँ पे लिमिट आपने नहीं पिक करनी, आपने सिर्फ पिक करना है कि वो है कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस जिसकी टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेस पर उठानी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस. दूसरी पॉइंट नंबर 7, ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस. ये वाली कंडीशन तो अभी ऊपर वाली कंडीशन से मैच ही है, कंटेंट मैच कर रहा है, बट इसमें चेंज है कुछ. हैविंग बोरोइंग, ऊपर वाले केस में पॉइंट नंबर 6 में बात की गई थी टर्नओवर की. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बोरोइंग टेकन बाय द एंटरप्राइजेस फ्रॉम द लाइक आउटसाइड द, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट. बोरोइंग है इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, वो भी इसमें कंसिडर्ड होगा इन एक्सेस ऑफ रुपीज. अब उसमें 10 करोड़ की पुरानी लिमिट है, हमने वो पुरानी लिमिट 10 की नहीं, हमने नई वाली पढ़नी है. एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. ये बोरोइंग के केस में सर आपने ध्यान देना है, बोरोइंग के केस में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. उस लिमिट से एक्सीड हुई नहीं, एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि वो लेवल 1 कंपनी बन गई. और जब मैं टर्नओवर की बात करूंगा तो टर्नओवर मुझे कौन सी लेनी है? टर्नओवर मुझे 31 मार्च 2021 के लेनी है, बट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए जिसके बेसिस पर मैं विश्वास करूंगा, मेरे को ट्रस्ट होगा, एंड दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अनऑडिटेड नहीं, नॉट प्रोविजनल. दैट बैलेंस शीट मस्ट बी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग एंड सब्सिडी एंटरप्राइजेस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव at any time during the accounting period. Holding and subsidiary enterprise. अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ऊपर वाली कंडीशन में आ जाती है, होल्डिंग कंपनी है, राइट, या सब्सिडरी है. इंटरप्राइजेस होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी है, वो अगर होल्डिंग भी इस कैटेगरी में आ रही है लेवल 1 में, तो सब्सिडरी भी लेवल 1 में आ रही है. कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, लेवल 1 कंपनी में. ठीक है. सो होल्डिंग एंड सब्सिडरी में ये देखना है, होल्डिंग के केस में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट कम्स अंडर द लेवल 1 एंटरप्राइजेस. इफ द होल्डिंग हैज सेटिस्फाई, होल्डिंग उस कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो गई है, वो कंडीशन के हिसाब से आ गई है, देन सब्सिडरी ऑटोमेटिकली कवर एज अ लेवल 1 एंटरप्राइजेस. की रिपोर्टिंग तो सेम रहेगी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होल्डिंग पे एप्लीकेबल होंगे वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब्सिडरी पे एप्लीकेबल होंगे, तभी तो रिपोर्टिंग सेम फॉर्मेट में दिखेगी. अदरवाइज तो वो जो रिपोर्टिंग होगी, जो डिस्क्लोजर्स होंगे, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को, बैंकर्स को मिसलीड कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई द लास्ट कंडीशन इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंटरप्राइजेस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव
at any time during the accounting period. पूरे साल में accounting period में कभी भी वो condition fulfill कर ले, चाहे holding है चाहे subsidiary है, will be considered as a level 1 enterprises. कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशंस आर सेम सर, नए वाले में भी सेम है. देखते हैं क्या, बट लिमिट चेंज है. लिमिट में नई वाली बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. पहली कंडीशन हमने समझी कि ऐसी इंटरप्राइजेस जिसके इक्विटी या डेप्ट सिक्योरिटी लिस्टेड है. द फर्स्ट कंडीशन इज लिस्टेड. दूसरा, सेकंड कंडीशन इज प्रोसेस इन द लिस्टिंग. प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग चल रहा है, बट प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग चल रहा है, बट उसके लिए एविडेंस क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशंस. That is the evidence कि वाकई वो प्रोसेस चल रहा है. बोर्ड रेजोल्यूशन के बेसिस पे we can decide yes the process is going on. The third one is bank. If there is a bank, a level 1 entity, sir, सारे accounting standard applicable. Financial institution, level 1. Enterprises carrying on the insurance business, level 1. All commercial industrial business जिसके टर्नओवर लिमिट में बताऊंगा, बट टर्नओवर कहां से लेनी है, कहां कैसे चेक करनी है? 31 मार्च 2021 द लास्ट डेट ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट एविडेंस क्या चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी से चेक करना है. एंड द सेवेंथ वन वाज द बोरोइंग, मोर देन सच एंड सच अमाउंट, बट बोरोइंग कैसे चेक करनी है? ड्यूरिंग द टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. और लास्ट वन, होल्डिंग एंड सब्सिडी. 8 कंडीशंस हैं लेवल 1 कंपनी में आने के लिए. जो लेवल 1 कंपनी में एक बार एंटर कर गई, जो लेवल 1 इंटरप्राइजेस बन गई, वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में नहीं आ सकती. इट मींस सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं इन द केस ऑफ व्हेन द एंटिटी कम्स अंडर द लेवल 1 एंटरप्राइजेस. ये आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए. मैंने बहुत इत्मीनान से बताया आपको. आगे चलते हैं. एक लास्ट पॉइंट है इसका, जो इसमें स्टडी मटेरियल में जो लिखा है, जो इसमें कंपेरिटिव में लिखा है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला मैंने बता दिया, टर्नओवर वाला बता दिया, ये वाला पढ़ते हैं. ये कहते हैं कि पॉइंट नंबर इसका जो है 24th पॉइंट है, रोमन 24. क्या लिखते हैं? डिस्क्लोजर इन द केस वेयर ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर सैंक्शनिंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट which is different from the prescribed by the accounting standard. क्या कहता है? दोबारा पढ़ते हैं. Disclosures in the case where a court या tribunal makes an order sanctioning and accounting treatment which is different from that prescribed by the accounting standard. अब accounting standard किसने prescribe किए? ICI, हमारी स्टीम बॉडी ने किया. ऑर्डर के बेसिस पर डिस्क्लोजर इसमें जो है, with the case where the court and tribunal make an order and sanctioning an accounting treatment which is different. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट है, बट कोर्ट या ट्रिब्यूनल कहती है कि जी इसके ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए. यहाँ पे डिफरेंस है. इस केस में क्या करेंगे? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा या कोर्ट का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? तो इसमें देखते हैं क्या कहते हैं. इसमें वो कहते हैं जी, if an item in the financial statement of the company is treated differently pursuant to an order made by the court or tribunal as compared to the treatment required by the accounting standard, following disclosures should be made in the financial statement of the year in which different treatment has been given. यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किए, बट कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया, ट्रिब्यूनल की तरफ से ऑर्डर आ गया, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंस आ गया उसकी डिस्क्लोजर के लिए. अब यहाँ पे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ गई. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करने हैं, बट इफ देयर इज एनी डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट और फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, देन आपको क्या करना है? तब आपको ये डिस्क्लोजर देने हैं. एंड व्हाट आर दोज डिस्क्लोजर? 3 डिस्क्लोजर हैं, ध्यान से सुने सर. ये कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप बड़ी कंपनी से डील करते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आपके सामने आ जाता है जो हायर अथॉरिटी का है. सो वहां पर आपको इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्ट करना है, बट डिस्क्लोजर देते समय ऑर्डर जो कोर्ट का है या फिर ट्रिब्यूनल का है, उसको यू हैव टू कीप इन माइंड. नंबर 1 डिस्क्लोजर, a description of the accounting treatment. The description of the accounting treatment made along with the reason that the same has been adopted, the same
लिखा है इसमें, विद द रीजन दैट द सेम हैज बीन अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर। इसमें लिखा है कि हमने इसको कोर्ट का जो, और जो हमने इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेड अलोंग विद द रीजन दिया है कि दैट द सेम हैज बीन अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर जो है उसके बेसिस पर हमने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द difference between the accounting treatment prescribed in the accounting standard and followed by the company, वो difference क्यों आया? Just because of the court order, just because of the tribunal order। ये disclosure देना है सर, पहला पॉइंट भी दें, दूसरा पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट, द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब कोर्ट का ऑर्डर आया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, उसके बेसिस पर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने अप्लाई किया उसमें ना एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया डिस्क्लोजर में। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट से रिलेटेड अगर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया तो उसका भी डिस्क्लोजर देना है। उसमें क्या लिखना था? फाइनेंशियल इम्पैक्ट इफ एनी अराइजिंग ड्यू टू सच डिफरेंस। तो उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी एक्सप्लेन करना है एंड यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल। तो तीन तरह के आपको डिस्क्लोजर देने हैं। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द practicing chartered accountant, the person who will sign the balance sheet, who will attest the balance sheet of that entity. So that is the responsibility. And we know the responsibility of the management just to prepare the financial statement. But when we are going to attest this financial statement, that is the that is the responsibility of the practicing chartered accountant who is going to sign, who is going to attest, who is going to verify. तो ये डिस्क्लोजर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ये कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई, जहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े ध्यान से उसके डिस्क्लोजर दे रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं जो एमसीए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आई 23 जून 2021 को। इसमें इन्होंने एक डेफिनेशन डाली। देयर इज अ डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है डेफिनेशन 1 और सब ब्रैकेट में लिखा है पॉइंट नंबर ई, 1 ब्रैकेट में स्मॉल ई, उसमें लिखते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी मीन। क्या मतलब है? अब जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले लेवल 1 कंपनी की, उसको ध्यान में रखना है और ये सुनना है कि यहाँ पर एमसीए क्या कहती है। फर्स्ट वन, whose equity or debt security are not listed. The word is not listed. Please confuse नहीं होना, the word is not listed, क्योंकि यहाँ पे एमसीए जो बात कर रही है वो बात कर रही है एसएमई की, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी की बात कर रही है। जब स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी की बात करेगी तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलेगी। वहां पर जो हाँ था वो यहाँ पर ना है। चलिए ध्यान से सुनते फिर दोबारा। whose equity or debt security are not listed or not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। वहां पे पहली कंडीशन क्या थी कि उसके इक्विटी या उसकी डेप्ट सिक्योरिटी लिस्टेड है। दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रोसेस में है। यहां पर एमसीए क्या कहती है नोटिफिकेशन में 23 जून 2021 को पॉइंट नंबर ई में कहती है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज कौन सी होती हैं? जिनके ना तो इक्विटी ना उनके डेप्ट सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, ना ही प्रोसेस में है, ना वो इंडिया में ना वो आउटसाइड इंडिया में। तो यहाँ पर नो वाला है, नॉट रजिस्टर्ड ईदर इन इंडिया नॉर आउटसाइड इंडिया। चलिए, ना ही वो प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, विच इज नॉट अ बैंक, वो बैंक भी नहीं है। अगर कोई एंटिटी बैंक नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो हम एक बार सोच सकते हैं कि हो सकता है ये लेवल 1 कंपनी की कंडीशन को फुलफिल ना कर रही हो। बट अगर वो बैंक है तो डायरेक्टली वी कैन कंसीडर एज अ लेवल 1 एंटिटी और उसके पास सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। देयर इज नो एनी एग्जम्पशन, देयर इज नो एनी रिलैक्सेशन अबाउट एनी डिस्क्लोजर, अबाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, whose turnover does not exceed। अब यहां पर लिमिट जो लिखी है सर, अब इस लिमिट को सुनना है कि वो लिमिट क्या है टर्नओवर की। whose turnover does not exceed 250 crore rupees in the immediately preceding accounting year। यानी आज अगर मैं बैठा हूं 28 अगस्त 2021 में, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स की मैं बात करूं तो 31 मार्च 2021 को मैं ये देखूंगा कि उस एंटरप्राइजेस की जो टर्नओवर है क्या वो 250 करोड़ से अबव है। अगर है, ओके, कंडीशन एक फुलफिल होगी।
अब वो चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, डेब्ट इक्विटी उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं है, प्रोसेस में है या नहीं है, इंडिया में है बाहर है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो बैंक है या नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी है या नहीं है, बट वन कंडीशन इज सेटिस्फाई, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था एनी वन और मोर, यहाँ पे आ जाओ दोबारा नेक्स्ट, which does not have borrowing in excess of 50 crores. अगर 50 करोड़ की बोरविंग उस एंटिटी की नहीं है और बाकी कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, तो वो लेवल 1 कंपनी नहीं है। बट लेवल 1 कंपनी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग सकते हैं। हमें नेक्स्ट स्टेप चेक करना पड़ेगा, मे बी दैट एंटिटी इज नॉट कम्स अंडर द लेवल 1 कंपनी, but maybe that entity can be a level 2 company, level 3 company, maybe level 4th company. So we have to recheck, we have to apply another condition to recheck, to check the things whether that company comes under level 1, level 2, level 3, level 4. If that company comes under level 1, all the accounting standard applicable. If it comes under 2, some exemption. Level 3, disclosure exemption, वो सब applicable. Level 4, बाहर, उसके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं। चलते हैं, अभी रिसेंटली मार्केट में सुनने को ये भी आ रहा है, बिकॉज यू नो द एमसीए इज ट्राइंग टू कंसीडर, ट्राइंग टू फिक्स वन यू नो द लिमिट, टर्नओवर लिमिट ऑडिट के लिए, और उसके नीचे जो कंपनीज आएंगी उसके ऊपर मे बी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर लेवल पे ना एक लिमिट सेट कर रहा है, जैसे इनकम टैक्स में ऑलरेडी सेट कर दिया 10 करोड़ और 1 करोड़, वो कंडीशन 5% वाली लगा दी, ऐसे इसमें भी आ रहा है। ऐसी स्मॉल एंड मीडियम के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए ऊपर भी यू नो ये लॉक लग गया, और 9C के लिए भी लॉक लग गया, वो सब चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें चल रही है कि इसके नीचे के कंप्लायंसेस को हटा दिया जाए, ऊपर के लेवल के ऊपर वाले को कंप्लायंसेस 100% कर दिए जाए, 50% 80% कर दिए जाए। सो ये चीजें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी चल रही हैं, तो देखते हैं क्या आता है मार्केट में। चलते नेक्स्ट, कहते हु डज नॉट हैव बोरोइंग 50 करोड़ रुपीस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। जब मैं बोरोइंग की बात करूंगा तो सर मैं बार बार बोलूंगा एनी टाइम, जब मैं टर्नओवर की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो 31 मार्च की बात करूं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, which is not the holding or subsidiary company of the company which is not a small and medium sized company. अब ये जो एंटिटी है ना तो ये किसी की होल्डिंग है, ना ये खुद होल्डिंग है, ना ये किसी की सब्सिडरी है। किसकी होल्डिंग है सब्सिडरी नहीं है, जिन जो ऊपर वाली कंडीशंस में आई है, जब उसमें नहीं आई है सो ऑब्वियसली दैट नॉट कम्स अंडर लेवल 1 कंपनी, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लेवल 1 एंटिटी। आगे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, दैट एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज a company shall qualify as a small and medium sized company if the condition mentioned therein are satisfied at the end of the relevant accounting period. At the end of accounting period, वहां चेक करना है इसको। दूसरी बात बोलता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर ध्यान रखना, 1 to 5, 1 से 5 तक, 7 and 9 to 29 as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India which are specified in the annexure to these rules। यानी कि annexure में उन्होंने, इस रूल के annexures में उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मेंशन किए हैं पार्ट बी में। वो मैंने इसमें लिए नहीं है, मैंने सिर्फ पार्ट ए का प्रिंट आउट निकाला है नोटिफिकेशन का, अदरवाइज सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने पार्ट बी में दिए। वो हम बाद में भी रिलेट कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कॉल करना या मुझे मेल करना। आगे चलते हैं, ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, कहते हैं द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल कम इनटू इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। कब से लग गए, 1 अप्रैल 2021, यानी कि वो पिछले वाला जो 31 मार्च 2021 है उसकी रिपोर्टिंग तो अब होनी है, तो उसके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, एवरी कंपनी अदर देन कंपनी ऑन विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस इंडियस, उनको नोटिफाइड हो गया अंडर द कंपनी रूल 2015 आर एप्लीकेबल and its auditor
shall comply with the accounting standard in the manner specified in the annexure. मैंने पहले भी आपको बोला था कि जिस कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, जैसे इंडियस की बात करूं, सो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट तो अपने आप ही है, और यहाँ फिर टैक्स ऑडिट का वो अकाउंटिंग जो अंडर सेक्शन 44AB है, या फिर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, जहां पर वो जनरल पर्पस के लिए आती है, जहां पर अटेस्ट फंक्शन है, वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल मैंडेटरी है. बट लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंपनी में कुछ एग्जम्पशन, कुछ रिलैक्सेशन है ऑब्वियसली, तो वो हमें कंसिडर करके चलना है. ठीक है, आगे चलो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसकी एप्लीकेबिलिटी है, उसको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है. डिस्क्लोजर, जैसे हमारे पास ICDS है, राइट, इनकम के भी वो कंप्लाइन उसके वो है कंप्यूटेशन के, हमारे पास IFRS है, हमारे पास इंडियस है, हमारे पास SME के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. वी हैव सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है, उसके अलावा ऑडिट स्टैंडर्ड, बहुत सारी चीजें. लास्ट पॉइंट कहता है इस नोटिफिकेशन का, पॉइंट नंबर 5 जो पहले पेज का है, क्वालिफिकेशन फॉर exemption or relaxation in respect of SMC यानी कि स्मॉल मीडियम कंपनीज के लिए. क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर एग्जम्पशन एंड रिलैक्सेशन. ध्यान से सुनना सर इसको. कहता है एन एग्जिस्टिंग कंपनी, मैं क्लियर करूंगा, एन एग्जिस्टिंग कंपनी which was previously not a small medium size company. प्रीवियसली मतलब पिछले साल वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी नहीं थी, and subsequently become small and medium sized company, shall not be qualified for exemption or relaxation in respect of accounting standard available to the small and medium sized company remain until the company remain a small and medium sized company for 2 consecutive accounting period. इसको थोड़ा एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं. मान लीजिए मेरी कंपनी थी, वो 31 मार्च 2021 को मैंने कंडीशन लगा के चेक किया और मैंने देखा कि वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंपनी में आ गई. अब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंपनी में आ गई, तो क्या मैं उसका एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन इसी साल से लूं? तो उसमें इसका जो MCA का जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियरली मेंशन है, कहते हैं कि until the company remain a small and medium sized company for 2 consecutive accounting period. यानी कि आपको एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन लेने के लिए कम से कम 2 साल लगातार आपको स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होना होगा. देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैटेगरी एंटिटीज. आई होप this one is clear to all the available respected members. अब आगे चलते हैं. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं अनेक्सर में, इसी MCA की जो नोटिफिकेशन आई है वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी शैल फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन while अप्लाइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज the small and medium sized company which does not disclose certain information pursuant to the exemption or relaxation given to it shall disclose the fact that it is an SME and has complied with the accounting standard. कहते हैं कि अगर कोई small and medium sized entity which does not disclose certain information pursuant to the exemption or relaxation, मान लीजिए कोई लेवल 2 और लेवल 3 कंपनी है, उसमें आ गई एंटिटी, बट वो अपने डिस्क्लोज नहीं करती. क्या नहीं डिस्क्लोज करती? जो उसको एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन मिल रही है. शेल डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करेगी? शेल डिस्क्लोज द फैक्ट दैट इट इज ए स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी एंड हैज कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. उसको ये डिस्क्लोजर में लिखना होगा कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो और मैंने इसके इंपैक्ट, इसके फैक्ट भी डिस्क्लोज करने हैं. कंपाइल्ड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो भी हो गया. इन सो फार एज दे आर एप्लीकेबल टू द SME ऑन द फॉलोइंग लाइंस. कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी लैंग्वेज भी बकायदा उन्होंने हमारी हेल्प के लिए दिया है कि प्रोफेशनल चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं. So what is the language? What are the language? The mention in that. So the paragraph is the company is a small and medium sized company as defined in the Company Act Rule 2021, notified under the Company Act 2013. Accordingly, the company has complied with the accounting standard as applicable to the small and medium sized company.
यही एज इट इज पैराग्राफ उठा के आपने उसमें पुट कर देना है डिस्क्लोजर में, जहां पर आपकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी हैं और आपने कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया रिलैक्सेशन और एग्जम्पशन, तो आपको ये पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में एज अ डिस्क्लोजर में डालना है, ताकि इन्वेस्टर्स, ताकि वो जर्नल पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंसिडर की जाएगी, then the investor, bankers, government department can consider that this entity is covered as a small and medium size entity और इसने accounting standard के compliances कर लिए। Point number 2, where a company being a small and medium size entity has qualified for any exemption or relaxation previously but no longer qualified for the relevant exemption or relaxation in the current period। अब ये भी केस हो सकता है सर, ये भी हो सकता है कि पिछले साल तो उसे एग्जम्पशन थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा राइट एमसीए वाले में कि आपको 2 साल कॉन्सिक्यूटिवली स्मॉल एंड मीडियम साइज की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन एंड एग्जम्पशन। अब 2 साल पूरे कर लिए, आपको बेनिफिट मिल रहा था, पिछले साल आप उसमें थे, प्रीवियसली आप रिलैक्सेशन में थे, बट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, नो लॉन्गर क्वालिफाइड। इस साल आप उसमें नहीं आ रहे, इस साल आप उसमें या तो 250 करोड़ प्लस हो गए या 50 करोड़ प्लस हो गए बोरोइंग है, या फिर आपके इक्विटी, इस एंटिटी के इक्विटी लिस्टेड में चले गए, या लिस्टेड हो गए इंडिया में या इंडिया से बाहर, या प्रोसेस में, या आपके जो दूसरे हैं डेप्ट हैं वो उसमें चले गए लिस्टिंग में, या फिर आप होल्डिंग और सब्सिडी जो कंडीशन थी वो सारी उसके ऊपर लग गई। सो नाउ नो लॉन्गर क्वालिफाई फॉर द रेलिवेंट एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। इस केस में क्या करना है, in the current accounting period the relevant standard or requirement become applicable। इस साल अगर आप लेवल 1 एंटिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, उसमें आ गए हैं, उसको आप उसमें पहुंच गए हैं लेवल 1 कंपनी में, एंटिटी में, तो ये रिक्वायरमेंट जो है आपके लिए बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द करंट पीरियड एंड द फिगर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड नीड नॉट बी रिवाइज्ड merely by reason of the having ceased to be an SME। अब जो पिछले साल की जो फिगर है, यानी कि 31 मार्च 2000, मान लीजिए हम बात करते हैं 31 मार्च 2020 में मैंने SME था, मेरी कंपनी SME थी और मैंने डिस्क्लोजर दे दिए थे, और वो जो फिगर थी रिलैक्सेशन और एग्जम्पशन के साथ थी। इस साल मैं SME नहीं हूं, इस साल मैं वो कैटेगरी 1 में चला गया, लेवल 1 कंपनी में बन गया, पहुंच गया, उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, लिस्टेड हो गया। अब मुझे जो फिगर देनी है वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे के सारे एप्लीकेबल है, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देने हैं, विदाउट एनी रिलैक्सेशन, विदाउट एनी एग्जम्पशन, बट उसके साथ कंपैरेटिव फॉर्म में जो पिछले साल की फिगर आएंगी, यानी इस साल जो 31 मार्च 21 की है, जो 31 मार्च 20 की है, वो फिगर अलग अलग उससे हो सकती है। पिछली बार एग्जम्पशन के साथ हो सकती है, इस बार विदाउट एनी एग्जम्पशन एंड रिलैक्सेशन हो सकती है। तो आपको पुराने वाली फिगर को कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है, रिलैक्सेशन और एग्जम्पशन के साथ। करंट ईयर्स की फिगर को एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, यानी ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू योर एंटिटी, वो आपने 100% करना है। आपको पुराने साल की फिगर कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज नहीं करनी सर, एज इट इज रखना, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, need not be revised merely by reason of its having ceased to be an SME, right? The fact that the company was an SME in the previous period and it had avail of the following exemption and relaxation available to the SME shall be disclosed in the notes to the financial statement। अब आपको नोट्स जो हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर एक नोट और लगाना है जहां पर आपको ये मेंशन करना है कि पिछले साल इसने एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन ली थी, बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर दैट कंपनी comes under as a level 2 company, level 3 company, level 4 company, but now this company comes under the level 1 company, so this company has taken relaxation and exemption in the last previous year। तो आपको नोट्स ऑन अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो सर ध्यान से सुने, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बोल रहा हूँ सर। तीसरा पॉइंट, इफ एन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी ऑप्टेड नॉट टू अवेल, ये भी केस हो सकता है सर, ये डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सर केस के, कोई एग्जम्पशन अवेल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कैटेगरी में आ रहा है बट एग्जम्पशन अवेल नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस बन रहे हैं। या कोई पिछले साल था इस साल नहीं है, या जो पिछले साल नहीं था इस साल है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तीसरे में क्या कहता है,
if an SME opted not to avail of the exemption or relaxation available to an SME in respect of any but not all the accounting standard, it shall disclose the standard in respect of which it has availed the exemption or relaxation. दोबारा आप सुनते हैं, कहता है अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है ऑप्टेड नॉट टू अवेल, वो चाहती है कि मैं यदि एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहती, अवेलेबल टू एन एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बट नॉट ऑल, मान लीजिए 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन मिलनी, जिसमें 3 में वो एंटिटी कहती है मुझे नहीं चाहिए रिलैक्सेशन, मुझे नहीं चाहिए एग्जम्पशन, मैं तो उधर पूरा रिपोर्ट करूंगी, बट वो किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन और एग्जम्पशन मांगती। कई बार होता है हम रिपोर्टिंग करते करते ना समय हमें लगता है कि ये रिपोर्ट करूंगा, इसको बनाने में, ये टेबल बनाने में बहुत टाइम लगेगा, चलो इसमें हमें तो एग्जम्पशन तो है, रिलैक्सेशन तो है, इसका हम बेनिफिट ले लेते हैं। सो अगर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इफ देयर इज एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल टू योर एंटिटी बट यू आर नॉट अवेलिंग, यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट डिस्क्लोजर। सो यहाँ पर क्या है, यहां पर यह है कि अगर आप किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसका डिस्क्लोजर देना है कि जी मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेनिफिट ले रहा हूं, राइट, तो वो आपको रिपोर्ट करना है। आगे चलते हैं। if an SME desire to disclose the information not required to be disclosed, ये एक नया केस आ गया, कोई एंटिटी चाहती है कि जी मैं डिस्क्लोज करूं, डिस्क्लोजर दूं, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एंटिटी कहती है कि मैं उसको डिस्क्लोजर दूं, तो वहां पर क्या लिखा है, if an SME desire to disclose the information not required to be disclosed pursuant to the exemption and relaxation available to the SME, अब उसको exemption है, relaxation है, वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहे मत करे, बट वो करना चाहती है, it shall disclose that information in compliance with the relevant accounting standard, तो वो relevant accounting standard को लगाकर अटैच कर यहाँ अटैच करके मीन्स उसको मेंशन करके उसको डिस्क्लोजर दे सकती है, तो दैट इज ऑप्शनल। बट जहां पर मैंडेटरी है वहां पर ऑप्शनल नहीं है, जहां पर लगता है कि आपको ये देना ही देना है, जैसे लेवल 1 कंपनी में आपको सारे डिस्क्लोजर देने हैं, सारे उसमें एक एक डिस्क्लोजर देने, बिकॉज ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू योर कंपनी, सो वहां पर आपको देने, बट बेनिफिट लेना चाहें अगर आपके पास रिलैक्सेशन है तो आप ले सकते हैं। लास्ट वन, द SME may opt for availing certain exemption or relaxation from the compliances with the requirement prescribed in the accounting standard, provided that such a partial exemption or relaxation and disclosure shall not be permitted to mislead any person or public। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, कहते हैं कि अगर आप किसी डिस्क्लोजर को देना चाहते हैं एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन के साथ, बट आप उसे पार्शियली देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी ये पार्ट तो मैं डिस्क्लोजर में देता हूं, ये नहीं देता, हालांकि आपको एग्जम्पशन मिली हुई है, आप पूरा छोड़ सकते हैं, बट कहते नहीं ये इतना पार्ट मैं दे सकता हूं, इतना नहीं, बट आप रिलैक्सेशन के साथ अगर पार्शियली डिस्क्लोजर देते हैं तो उसका कहीं मीनिंग, कहीं उसका बेनिफिट क्या है, कहीं उसका पार्शियल एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन एंड डिस्क्लोजर शैल नॉट बी परमिटेड to mislead any person or public। अगर वो डिस्क्लोजर, अगर वो जो नोट्स ऑन अकाउंट है उसमें जो डिटेल मेंशन्ड है वो कहीं पर भी किसी भी पर्सन को मिसलीड ना करे, पर्सन और द पब्लिक, अगर मिसलीड करती है तो आपको फिर कंप्लीट देना है सर, तो दैट पार्शियल डिस्क्लोजर अगर मिसलीड करता है तो आपको कंप्लीट देना है सर। नेक्स्ट चलते हैं, एंड द लास्ट वन रिलेटेड टू दिस द MCA के जो नोटिफिकेशन, इसका लास्ट पॉइंट आ गया, ये भी बड़े ध्यान से सुनने वाला है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस द MCA जो नोटिफिकेशन आया। पॉइंट नंबर 2 में कहता है, मेजर पॉइंट जो बिग 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड आर इंटेंडेड टू बी कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ। क्या कहता है, to be conformity with the provision of applicable law, जो applicable law है उसके साथ उसको confirm है, conformity है। however if due to subsequent amendment in the law a particular accounting standard is found to be not in conformity with such law, the provision of said law will
will prevail and financial statement shall be prepared in the conformity with such law. मैंने आपको पहले क्या बोला था सर? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था. सो आई ऑलरेडी मेंशन कि जहाँ पे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है या कोर्ट का ऑर्डर है, सो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पे हमें वो लॉ के हिसाब से चलना है, उसको प्रिवेल पहले करना है, वो पहले होना चाहिए. तो यहाँ पे लिखा है ऑफ सेड लॉ विल प्रिवेल एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद सच लॉ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको प्रायोरिटी पे रखना है. आगे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इंटेंडेड टू अप्लाई only to items which are material. जनरल पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्वियसली जब उसमें कोई चीज हम डिस्कस करते हैं, जब उसमें डिसीजन लेते हैं, जब उसको एनालिसिस करते हैं, सो डेफिनेटली हमारा जो मेन फोकस एरिया होता है वो होता है मटेरियल आइटम्स. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंटेंडेड टू अप्लाई ओनली टू द आइटम्स व्हिच आर मटेरियल. बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए. लास्ट पॉइंट, the accounting standard includes a paragraph set in the bold, italic type and plain type. अब हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, चाहे हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, चाहे हम लॉ पढ़ते हैं, चाहे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइन को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी किया होता है. वो बताते हैं कि these lines are very very important. चाहे वो स्टैंडर्ड पैराग्राफ हो, चाहे स्टैंडर्ड लाइंस हो, चाहे वो नॉर्मल डिस्कशन, कुछ भी लिखा हो, अगर वो बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक हैं, सो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. बट उनकी क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं. कहते हैं पैराग्राफ सेट इन द बोल्ड, इटैलिक टाइप एंड प्लेन टाइप व्हिच हैव इक्वल अथॉरिटी. अथॉरिटी तो इक्वल है, बट आगे क्या कहते हैं, पैराग्राफ इन बोल्ड, इटैलिक टाइप इंडिकेट द मेन प्रिंसिपल. इंडिकेट द मेन प्रिंसिपल. आप जब भी कभी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ें, आपने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, तो उसका जब स्कोप पढ़ते हैं ना, स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप देखेंगे उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी किया होता है. तो that is the that was the main area. So that is the main objective of the principle, and individual accounting standards shall be read in the context of the objectives. उसके objective जरूर पढ़ो. If stated in that accounting standard and in accordance with the journal instructions, right? So bold, italic का था वो सब इसमें मेंशन था. एमसीए की गाइडलाइंस भी, ये जो नोटिफिकेशन है जिसकी डेट है 23 जून 2021, इसको आप डाउनलोड कर लेना सर पीडीएफ फॉर्म में. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मेरे पास नेक्स्ट वी हैव अनदर 45 मिनट्स. उसमें मुझे कुछ नफरा की बात करनी है, AS 250 की बात करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो AS 250 तो मैं छोड़ नहीं सकता, बिकॉज वही एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है. ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नो क्लार में भी आता है, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स में जो अभी भी डेफर्ड है. चलिए नफरा की बात करते हैं. नफरा बेसिकली क्या है कि नफरा का पिछले कुछ सालों से बहुत मार्केट में चल रहा है, डर भी है कुछ ऐसी. क्या है नफरा? बेसिकली नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. एक ऐसी अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूटेड की गई ऑन 1 अक्टूबर 2018 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सबसेक्शन, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेक्शन 132(1) ऑफ कंपनी 2013, उसमें इसको जो है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया. बट इसका जो मेन फंक्शन था, फंक्शन एंड ड्यूटी क्या है, फंक्शन की बात करते हैं, ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला है. सेक्शन 132 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी 2013. फंक्शन की बात करते हैं, कहते हैं रिकमेंडेड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या काम है इसका? फंक्शन क्या है कि रिकमेंड करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी. कि कंपनी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से जो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करे विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. उनको रिकमेंड करना और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना. सेकंड वन, मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंसेस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. को मॉनिटर भी करना. तो बड़ी बड़ी कंपनी है जो कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस कर भी रही है, नहीं मॉनिटर कर. ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएटेड. हमारी क्वालिटी का भी ध्यान रखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिटी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कंप्लायंसेस से रिलेटेड.
with ensuring compliances with the such standard and suggest measures for improvement in the quality of service. उसके ऊपर भी ध्यान देना. Last one, perform such other function and the duties as may be necessary or incidental to the aforesaid function and duties. अब जो ऊपर फंक्शन जो दिए गए थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करना, पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी रिकमेंड करना, स्टैंडर्ड रिकमेंड करना, मॉनिटर करना, प्रोफेशनल की क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखना, और इसके अलावा अगर कुछ बच जाए या इससे रिलेटेड है जो ऊपर मेंशन किए 3 पॉइंट, तो उसके ऊपर भी काम करना. ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कहता है कि इसका जो रूल 4 सब 1 है, जो नफरा का रूल 2018 का, provides that authority shall protect the public interest. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला अटेस्ट फंक्शन में चार्टर्ड अकाउंटेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्ट करता है तो वो जनरल पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर की गई, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है. तो नफरा का रोल है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स. देखिए कौन कौन से रिलेटेड पार्टी है. फर्स्ट वन इज द पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कौन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, अदर एसोसिएटेड विद द कंपनीज. अब सब्सिडरी भी हो सकती है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बॉडीज कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड अंडर रूल 3 by establishing high quality standard of accounting and auditing and exercise effective oversight of accounting function performed by the company and body corporate and सर ध्यान से लास्ट में अब हमारे ऊपर बात आ रही है, ऑडिटिंग फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑडिटर. यानी कि कौन कौन कवर हो गए, ऑब्वियसली कंपनी कवर होगी, बॉडी कॉर्पोरेट्स कवर हो गया, तो लास्ट में ऑडिटिंग फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑडिटर्स. हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमें सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, कंप्लायंसेस पता होने चाहिए, कहां पर एप्लीकेशन चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो ये वाला पार्ट कवर हो गया. एंड इसके बाद फिर चलते हैं AS 250. पूरा नहीं पढ़ूंगा AS 250, सिर्फ मैं बात करूंगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो अटेस्ट फंक्शन भी हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट के ऊपर तो है ही है, बट अटेस्ट हम कर रहे हैं, बैलेंस शीट हम साइन कर रहे हैं जनरल पर्पस के लिए, तो हमारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो AS 250 क्या कहता है उसको ध्यान से सुनते हैं. कहते हैं द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statement, reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error in conducting an audit of financial statement. The auditor takes into account the applicable legal and regulatory framework. बस ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डिफाइन हो जाती है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल मींस द कंप्लीट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कोई भी ऐसा हेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो हमें पता है इसका डिस्क्लोजर क्या है. जब हम डिस्क्लोजर देंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, डिस्क्लोजर बनाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, तब हमें पता चलेगा इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है. जनरल पर्पस में जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट टू द इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, बहुत सारी चीजों में, राइट. सो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड. जब हम फॉरेंसिक पढ़ते हैं ना, फॉरेंसिक पढ़ते हैं तो उसमें फ्रॉड आता है. फ्रॉड, कई ऐसे फ्रॉड होते हैं, व्हाइट कॉलर फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी चीजें, बट टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग द फॉरेंसिक ऑडिट. But yes, fraud word is there. कारों में भी ये चीज को बहुत अहमियत दी गई कि fraud, if there is a fraud in the company, then auditor responsibility is there. Auditor has to report in the audit report. Yes, there is a fraud activities. But हाँ, उसको कैसे देना है वो उसमें already accounting standard में mention है. और error की वजह से in conducting an audit of the financial statement, the auditor takes into account and applicable legal and regulatory framework. वो सारी चीजें applicable. So this was the responsibility of the auditor according to the AS 250. अब मेरे पास नेक्स्ट 40 मिनट्स हैं और 40 मिनट्स में बाकी सब चीजें मैं मेजर कवर कर चुका हूं, बट लास्ट 15 मिनट मैं और बोलूंगा और उसके बाद 5 मिनट मेंबर्स के लिए हैं. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे सो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं.
और अगर अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं है, तो नंबर्स आप गुप्ता जी से ले पाएंगे फ्यूचर बाद में वेबिनार के बाद, एंड यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। चलिए, इसमें मैंने अभी तक सर जो चीजें कवर की गुप्ता सर, वो मैंने की है। कुछ तो अनाउंसमेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज, वो मैंने डिस्कस कर दिया। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कंपेडियम आया था जो जुलाई 2019 का, उसके मेजर पॉइंट मैंने कवर कर दिए। और गाइडेंस नोट्स जो टैक्स ऑडिट के जो हैं अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। एग्जम्पशन एप्लीकेबल टू लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 only and should not applicable to the entity other than, right, जो SME हैं, जो स्मॉल मीडियम साइज एंटिटीज हैं, वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में हैं। इसके अलावा अगर कोई बच गया है तो उसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन, कोई भी रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। नाउ ये मैंने डेट बता दी आपको, न्यू क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट भी मैंने बता दिया, बट दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कहते हैं कि दिस अनाउंसमेंट इज नॉट रेलिवेंट। कौन सी अनाउंसमेंट? एसएमई वाली, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली, नॉट रेलिवेंट फॉर द नॉन कंपनी एंटिटीज हु मे रिक्वायर टू फॉलो इंडियस। अब आप देखिए कि एसएमई में कुछ ऐसी भी, मतलब छोटी स्मॉल मीडियम साइज की कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके ऊपर अगर इंडियस एप्लीकेबल हो गए। जैसे मैं बात करता हूं एग्जांपल के तौर पर सब्सिडरी कंपनी की बात करता हूं, कि अगर उसकी होल्डिंग में इंडियस एप्लीकेबल हो गए तो सब्सिडरी पे भी हो गए। अब वो चाहे 250 करोड़ है, 50 करोड़ है या नहीं, चाहे वो बाकी कंडीशन में फुलफिल हो रही है नहीं, तो यहाँ पर वो इस क्राइटेरिया से बाहर हो गई। सो इंडियस एप्लीकेबल है पर द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, सो एप्लीकेबल टू सच एंटिटी, तो आप यहाँ से आउटसाइड हो गए। आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंपनी में अब नहीं आएंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कंसिडर्ड इन द लेवल 1 एंटिटी, बिकॉज आपकी जो होल्डिंग है उसके ऊपर एप्लीकेबल। अब मैं वापस आ रहा हूं, लेवल 1 कंपनी की जो कंडीशंस आई हैं वो क्या है? पहली कंडीशन कहते हैं कि नॉन कंपनी एंटिटी विच फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एट द एंड ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड आर क्लासिफाइड एज ए लेवल 1 एंटिटीज। लेवल 1 एंटिटीज, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमसीए की नोटिफिकेशन, वो जो जून 2021 वाली डिस्कस की थी, उसमें भी पहला पॉइंट यही है जो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। कौन कौन सी है? कोई एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन। नंबर 1, एंटिटी हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट। तो ये पहली वाली कंडीशन जो मैंने पहले डिस्कस की। दूसरा पॉइंट जो था वो था बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंटिटीज कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। तीसरा था ऑल एंटिटीज एंगेज इन द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी हुज टर्नओवर एक्सीड ₹250 करोड़। अब ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है, ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 250 करोड़ की बात हो रही है, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। और 250 करोड़ की टर्नओवर में भी मैंने आपको बोला था इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, एंड में देखना है कि कितनी टर्नओवर है, और वो भी किसके बेसिस पे देखना है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखना है। एंड द फोर्थ कंडीशन जो थी, ऑल एंटिटीज एंगेज इन द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी हैविंग बोरोइंग इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। अगर किसी की टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर है तो वो एंटिटी लेवल 1 कंपनी में आ गई। अगर उसके साथ उसकी बोरोइंग भी है, मान लीजिए उसकी टर्नओवर 210 करोड़ की है, बट उसकी बोरोइंग जो है, जो लिमिट यहाँ पे 50 करोड़ है, मान लीजिए उसकी बोरोइंग 55 करोड़ की है, तो ये सेकंड कंडीशन में फुलफिल होगी, तो ये लेवल 1 एंटिटी में आ जाएगी। बट ये भी हो सकता है कि उसकी टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से नीचे है, बोरोइंग भी 50 करोड़ से नीचे है, but maybe that entity in the process for the listing to become a listing company, इक्विटी शेयर्स के प्रोसेस में, उसमें लिस्टिंग में प्रोसेस में है, उसके डेप्ट सिक्योरिटी में है, या वो बैंक है, या वो इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर होल्डिंग और सब्सिडरी है, तो लेवल 1 एंटिटीज आ जाएगी। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज की बात करते हैं, सिक्योरिटी इंक्लूड्स, उसका जो सेक्शन है सेक्शन 2H, वो क्या कहता है? सिक्योरिटी इंक्लूड्स, क्योंकि सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, सिक्योरिटी के बड़ी समझ में नहीं आता है कि सिक्योरिटी में क्या क्या कवर किया गया। सो व्हाट इज कवर्ड इन अंडर द सिक्योरिटी? तो सेक्शन 2H कहता है व्हाट इज सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स,
debentures, debenture stock, other marketable security of a like nature in any or of any incorporated company. दोबारा से बता रहा हूं, शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ ए लाइक नेचर इन एनी ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, किसी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की कोई भी शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट हैं, स्टॉक हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं या कोई और लाइक कुछ ऐसा है, तो दैट इज कवर्ड अंडर दिस सिक्योरिटीज। लेवल 2, अब पहले वाले में कंडीशन 250 करोड़ की थी टर्नओवर की, और दूसरी कंडीशन क्या थी, बोरोविंग की 50 करोड़। यहां पर क्या है, सेम बाकी सब चीजें वही हैं, बट यहां पे इंस्टेड ऑफ 250 करोड़ अब लेस देन 250 करोड़ बट मोर देन 50 करोड़ टर्नओवर। अगर 50 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है पर 250 करोड़ से नीचे है तो वो लेवल 2 कंपनी में आ। अब जब लेवल 2 एंटिटी में आ गई तो उसको एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वो कौन कौन से स्टैंडर्ड में मिलेगा उसको हमने डिटेल में पढ़ पाएंगे, बट आज मेरे पास, मैं बोलूंगा कि 2 घंटे काफी नहीं है कि आपको मैं हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेवल 2 लेवल 3 कंपनी को कौन कौन सी एग्जम्पशन एंड रिलैक्सेशन मिली हैं उसको एक्सप्लेन करूं। सो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे का या 3 घंटे का और सेशन उसमें कवर हो जाएगा, तो 5 घंटे का सेशन चाहिए वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स वगैरह। बट हाँ, कुछ 2-4 स्टैंडर्ड्स के मैं डिस्क्लोजर आपको बता के जाऊंगा जो रिलैक्सेशन में, एग्जम्पशंस में कवर है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है या और दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दैट आई विल मेंशन। तो पहली कंडीशन थी जहां पर टर्नओवर थी लेवल 1 कंपनी में 250 करोड़ टर्नओवर, यहां अबव। लेवल 2 में क्या है, लेस देन 250 करोड़ बट शुड बी मोर देन 50 करोड़, यानी कि दूसरा क्लासिफिकेशन क्या बना, 50 से 250। पहला जो था 250 प्लस, दूसरा जो बना वो बना 50 से 250। बोरोविंग के केस में वहां पर लिमिट थी 50 करोड़ की, वहां पर कंडीशन थी 50 करोड़ की। यहां पर लेवल 2 कंपनी में जो लिमिट है वो है 10 करोड़ से 50 करोड़, बिटवीन मोर देन 10 करोड़ एंड लेस देन 50 करोड़, तो ये लेवल 2 कंपनी में आ गई। बाकी सब कंडीशन वही है, होल्डिंग, सब्सिडरी और वो सब उसमें आएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, बट इसमें बैंक और वो इंश्योरेंस सेक्टर नहीं आएंगे, प्लीज उसको मत कंसिडर कीजिए। इसमें सिर्फ टर्नओवर और बोरोविंग की कंडीशंस हैं, और लास्ट वाली जो कंडीशन थी होल्डिंग एंड सब्सिडरी। लेवल 3 कंपनी में कौन सी आएंगे, लेवल 3 कंपनी में कहते हैं कि एंटिटीज एंगेज इन द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस, और इसकी जो टर्नओवर है वो टर्नओवर पहले वाले में 250 करोड़, दूसरे वाले में 50 से 250, तीसरे वाले में 10 करोड़ से 50 करोड़, लेस देन 50 करोड़ बट मोर देन 10 करोड़। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, 50 करोड़ से नीचे, तो लेवल 3 कंपनी में आ गई, थर्ड लेवल पे आ गई। और बोरोविंग की जो कंडीशन है, जो पहले जो 50 करोड़ थी फिर दूसरी 10 से 50 हुई, यहां पर बोरोविंग की कंडीशन आ गई 2 करोड़ से 10 करोड़। अब जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ कंपनीज के केस में ऐसा कुछ सोच रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी लिमिट होनी चाहिए कि उससे नीचे हमारे कंप्लायंसेस या हमारे कॉर्पोरेट के ऑडिट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो है वो जनरल पर्पस के लिए या अच्छे लेवल के, मतलब हाई लेवल की कंपनी में कंसिडर नहीं होती, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है, जहाँ पे बैंकों से लोन नहीं है, जहाँ पे बोरोविंग नहीं है। उस केसेस में उसको उस बॉटम लेवल पे रखें और वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंसेस को हटा दें। वो जो है मेरे हिसाब से जो आने वाली जो लिमिट है वो है टर्नओवर अगर 10 करोड़ से नीचे है, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी 10 करोड़ कर दी। तो एमसीए के केस में भी मेरे हिसाब से कुछ ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पर कोई कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, जिनकी बोरोविंग 2 करोड़ से नीचे है, उसको लेवल 4 कंपनी में डाल दिया जाएगा, और लेवल 4 कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंसेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब जब मैं लेवल 4 कंपनी की बात करता हूं तो वहां पे बोलता है कि लेवल 4 कंपनी कौन सी होती है, कहते ऐसी कंपनी जिनकी टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है, यानी कि 0 to 10 करोड़, और बोरोविंग 0 to 2 करोड़, यानी कि 0 से लेकर 2 करोड़ तक की अगर बोरोविंग है, 0 से लेकर 10 करोड़ तक की अगर टर्नओवर है, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स में उसे टैक्स ऑडिट से बाहर कर दिया गया, प्रोवाइडेड वो 5% वाली कैश ट्रांजेक्शन वाली वो भी देखनी है सर, वो ध्यान रखना है, वो 5% वाली मत छोड़ देना, वो जो टोटल रिसीट है, राइट। अब अगर उससे नीचे है तो अगर इनकम टैक्स से भी उसे बाहर कर दिया गया टैक्स ऑडिट से, और जीएसटी में भी आप देखो
जीएसटी में भी 9 से खत्म हो गया, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जीएसटी की बिल लिमिट वो 10 करोड़ की सेट हो जाएगी। तो 10 करोड़ से नीचे अगर आपके क्लाइंट हैं तो वहां पे बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ सकती है कि छोटा मोटा लोन क्लाइंट को बैंक से लेना है। बट अदरवाइज मैं बात करूं, एमसीए की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं या जीएसटी की बात करूं, सो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो अटेस्ट फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं वहां पर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वापिस आते हैं। सो ये चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। एक छोटी सी ना समरी है जिसको एप्लीकेबिलिटी एंड एग्जम्पशन टू ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू द लेवल 1 कंपनी। अब देखिए लेवल 1 कंपनी में तो मैंने आपको बोला कि लेवल 1 कंपनी को कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई भी रिलैक्सेशन या एग्जम्पशंस नहीं है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द लेवल 2 कंपनी, लेवल 3 कंपनी, लेवल 4 कंपनी, तो इसमें क्या क्या मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं। लेवल 2 कंपनी को 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, और लेवल 3 को 12 और लेवल 4 को सिर्फ 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। कौन कौन से उसकी लिस्ट है, इसके ऊपर अभी और काम होना है। नॉट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो नॉट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड 7 लेवल 2 कंपनी में, लेवल 3 में 9 और लेवल 4 में 11। और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द डिस्क्लोजर एग्जम्पशन, लेवल 2 की बात करूं तो 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं, और लेवल 3 की बात करूं तो 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं, लेवल 4 की बात करूं तो 6 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिसमें डिस्क्लोजर एग्जम्पशन है। और अगर एप्लीकेबिलिटी पार्शली की बात, उसके अपना टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव 29, जो हमने पहले ऑलरेडी बात कर ली। अब देखिए ये कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो सभी को एप्लीकेबल है, सभी को एप्लीकेबल, चाहे वो लेवल 1 एंटिटी है, लेवल 2 एंटिटी है, लेवल 3 है, लेवल 4 भी है, तो उसमें भी आपको एप्लीकेबल है। कौन कौन से, एंड सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सब पे एप्लीकेबल है। नंबर 1, हाँ, बट अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस वैसा नहीं है तो नहीं एप्लीकेबल। नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। जब भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको टेस्ट करेगा, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लगाना। दूसरा, इफ देयर इज अ स्टॉक, there is a requirement of valuation of an inventory, accounting standard 2 is also applicable. Accounting standard 4, contingency and events, बहुत सारी आपको पता है हर कंपनी में कोई ना कोई contingency event या event occurring after the balance sheet होते हैं, so वहां पर there is a requirement of the accounting standard 4. Accounting standard 5, net profit or loss for the period, prior period item or change in the accounting policy. आपको पता है जब हम 3CT रिपोर्ट बनाते हैं तो 3CT रिपोर्ट में भी पॉइंट आता है, is there any change in the accounting policy? If there is a change, yes, then उसको आगे भरिए सर। उसके बाद फिर ICDS आ जाता है, वो भी आपको देखना है। Accounting standard 7, if the entity, the nature of business is construction, then construction contract का ये 7 लग जाता है। 9 तो सभी में लगता है ना, रेवेन्यू तो सभी का है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो सभी के केस में है, so 9 is applicable, revenue recognition. 12, accounting for the government grant. If you have received any government grant, then accounting standard 12 is applicable. Accounting standard 16, the borrowing cost. Obviously, हमने तीनों लेवल में borrowing की लिमिट पढ़ी है. If there is a borrowing, the accounting standard 16 is applicable. Now, following standards are not applicable to the level 2, level 3, level 4 companies. कौन कौन से? AS3. अब AS3 की बात करते हैं तो AS3 जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, जो एक ऐसी एंटिटी जिसकी 250 करोड़, क्योंकि जब हम इंडियस की बात करते हैं तो 250 करोड़ की टर्नओवर की बात करते हैं और उससे अबव की बात करते हैं, ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। जब इतनी बड़ी कंपनी की बात करेंगे ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको लगेगा ही। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट लगेगा तो AS3 तो एप्लीकेबल है ही, बट बाकी में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में तो नहीं लगेगा। लेवल 1 कंपनी को लगेगा। लेवल 1 कंपनी को सेगमेंट रिपोर्टिंग भी लगता है। आप हिंदुस्तान लीवर की बात करें, आप रिलायंस की बात करें, आप टाटा की बात करें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी उनके सेगमेंट चलते हैं डिफरेंट, राइट। आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, मॉल्स हैं, बहुत सारी चीजें। आप AS20 की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर, so obviously there is a company, the earning per share is there, so AS20 is applicable.
कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इंडियस के केस में भी है, IFRS के केस में भी है, लार्ज एंटिटीज के केस में, लेवल 1 एंटिटीज के केस में भी है। कंसोलिडेशन तो होती है क्योंकि वहां पे सब्सिडरी और होल्डिंग भी होती है। किसी का या प्लीज अपने आप को म्यूट करें, जिन्होंने अनम्यूट किया प्लीज। विनोद सर के यहाँ से, यस सर, थैंक यू विनोद जी। क्योंकि साउंड आता है तो फिर उसमें क्या होता है, जो हमारे मेंबर्स सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, आप सभी वैल्यू एडिशन के लिए बैठे हैं उन्होंने टाइम निकाल के, तो आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो कोई डिस्टर्बेंस ना है, थैंक यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, जहाँ पे अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट्स इन कंसोलिडेशन ऑफ द, अब जॉइंट वेंचर की बात करें, अब डिफरेंट एसोसिएट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, वहां पर पैसा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की बात होगी। सो डेफिनेटली सुनो, ये स्टैंडर्ड जो है लार्ज कंपनीज के केस में लगेगा, तो ऑब्वियसली ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में नहीं लगेगा। इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग निकालती हैं, इंटरीम डिविडेंड की बात करती हैं, सो ऑब्वियसली उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को टेस्ट करनी है। सो लार्ज कंपनीज हैं, लेवल 1 का एंटिटीज में कवर होती हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। द लास्ट AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर, ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड दिस पॉइंट, द जॉइंट वेंचर वाला, राइट। सो इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद आई थिंक द लास्ट पार्ट जो मेरा रह गया, हाँ चलिए मैं ये बात करता हूँ डिस्क्लोजर के लिए। मैंने आपको बोला था AS 10 में कुछ ऐसे डिस्क्लोजर है जहां पर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे में मुझे देखना है कि कहाँ किस किस को क्या क्या एग्जम्पशन है, रिलैक्सेशन। जो AS 10 है सर, अब ध्यान से सुनेंगे, AS 10 में कुछ रिक्वायरमेंट है। AS 10 में क्या रिक्वायरमेंट है? एंड एंटरप्राइजेस इज encourages to disclose the following, क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी होती है AS 10 में। जो लार्ज कंपनी होगी उसको डिस्क्लोज करना है, बट जो लेवल 3 एंड लेवल 4 एंटिटीज होंगी उनको नहीं डिस्क्लोज करना, उनको एग्जम्पशन है। नंबर 1, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द टेम्परेली आइडल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अगर किसी कंपनी के पास कोई टेम्परेरी आइडल प्रॉपर्टी पड़ी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पड़ा है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट आपको डिस्क्लोजर में डालना, राइट। तो ये लार्ज कंपनी के केस में तो आपको डिस्क्लोजर देना है, लेवल 1 में भी आपको देना है, बट लेवल 2 एंड लेवल 3 में एग्जम्पशंस है। द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी fully depreciated property, plant and equipments that is still in use। कई बार हमने कंपनीज में देखा है कि कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो उसको आज भी हम यूज कर रहे हैं, आज भी हम उसको फैक्ट्री में यूज हो रही है, बट उसका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी आज भी वो यूज हो रहा है, उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख ही नहीं रही, यहाँ फुली डेप्रिशिएटेड हो गई, राइट, बट आज भी यूज हो रही है, उसका डिस्क्लोजर। The carrying amount of the property, plant and equipment retired from the active use and not held for disposal। अब डिस्पोजल करने के लिए तो है नहीं, बट ये है कि आपने उसे एक्टिव वहां से भी हटा दिया, रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज वहां से भी हटा दिया, और डिस्पोजल भी नहीं, राइट, नॉट हेल्ड फॉर द डिस्पोजल उसके लिए भी नहीं है, सो ऑब्वियसली उसको भी आपको डिस्क्लोजर में डालना है। तो ये AS 10 से रिलेटेड कुछ ऐसा था। अब मैं इसका थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड था जिसमें मुझे आपको बताना था, 1 मिनट, मुझे उसके लिए भी, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट का भी था, एम्प्लॉय बेनिफिट में भी डिस्क्लोजर है। सो वहां पर आप देखेंगे लीज के केस में भी डिस्क्लोजर है, और लीज भी फाइनेंस लीज उसके ऊपर भी डिस्क्लोजर हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से वहां पर उसे हटा दिया गया है, कहीं पर उसे एग्जम्पशन दे दी गई है। नाउ वापस चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं, लास्ट का एक पार्ट रह गया AS 14। AS 14 में ना एक बहुत अच्छी चीज लिखी गई है, नहीं ये मैं कवर कर चुका हूँ, 1 मिनट, एग्जम्पशन भी कवर कर चुका हूँ। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 44AB की, जो इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जहां पर लिखा गया है a tax audit are the auditor supposed to follow the accounting standard। जहां पे लिखा है कि अगर आप किसी का टैक्स ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं, so there is a responsibility of the practicing chartered accountant, there is a responsibility of the auditor, right। तो वहां पे क्या लिखा है, as it considered an attest function, hence the auditor should follow the accounting standard in such attest function। और responsibility क्या है, so what are the services covered under attest function? Number 1 कहते हैं कि जितने भी attest function में आती हैं, कहते हैं means the service involved in the auditing or verification of the financial statement, books of accounts or preparation
verification, certification, financial accounting or related statement are defined under section 2 subsection 2 Roman 2 of the Chartered Accountant Act 1949 but does not include. तो attest function में क्या क्या आता है सर? क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले मैं बात कर रहा था इसके ऊपर नेटवर्किंग ऑफ द सीए फर्म की, तो वहां पर बात चल रही थी अटेस्ट फंक्शन में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो अटेस्ट फंक्शन में क्या क्या कवर होता है कि जहां पर ऑडिटिंग, verification of financial transactions, books of accounts, records, preparation, verification, certification of the financial accounting related to the statement as defined, वो section जो 2 sub section 2 Roman 2 वो दे रखा है, उसमें मेंशन है कि सारी चीजें कवर्ड है। बट इसमें क्या चीजें कवर नहीं होती, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस हम ओपन कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास ये अभी जो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप आ गया वो भी उसमें आ गया, जिसमें हम अटैच फंक्शन नहीं कर सकते। जिसमें नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा था 2 दिन पहले, तो नेटवर्क आ गया, अलायंस आ गया, नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म आ गया, उन प्लेटफॉर्म पे भी हम अटैच फंक्शन नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट, या फिर रिप्रेजेंटिंग ए क्लाइंट बिफोर द अथॉरिटीज, या फिर एंगेजमेंट टू प्रिपेयर द टैक्स रिटर्न और एडवाइजिंग क्लाइंट इन द टैक्सेशन मैटर। अब ये वाला पॉइंट जो मैंने, चलिए कभी कोड ऑफ एथिक्स पे बात करेंगे तो इसको डिटेल में बता। एंगेजमेंट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, एंगेजमेंट solely to assist the client in preparing, compiling and collecting information other than the financial statement and testifying, ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हमने अटेस्ट नहीं करना, और जहां पर हमने अटेस्ट करना है वहां पर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, so we have to check the entity. If there is a level 1 entity is there, 100% accounting standard, level 2, level 3, level 4, yes we have some exemption and relaxation. इसमें एक चीज लिखिए कि while discharging their attest function, very important sir, I need your attention, it will be the duty of the members of the institute to ensure that the accounting standard are implemented in the presentation of financial statement. ना इंडियस 1 अगर आप बात करते हैं ना, इंडियस 1 वो presentation of financial statement की बात करता है, preparation वाला, तो by their audit report in the event of any deviation from the standard, it will be also their duty to make adequate disclosure. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते समय कहीं पर भी कोई चूक हो गई है, डेविएशंस हो गई हैं, it is the duty, it is the responsibility of the chartered accountant auditor to make adequate disclosure in their report so that the user of such statement may be aware of such deviation. यानी कि जो भी आपने ऑडिट किया है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंसेस, रिलैक्सेशन, डिस्क्लोजर जो भी आपको लगता है, all the information which are material for the investor, material for the government department, material for the authority, material for the court, law, सब उसमें आपको डिस्क्लोज करना है so that the deviation can be understood by the interested, जो उसके रीडर है, जो उसके ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए वो important. I think now it's over from my side. चलिए, so time हो गया 5:45. Sir, Gupta sir, over to you sir. So deliberation जो मेरी तरफ से थी वो each and everything I have explained in a very detailed manner, and now over to you for further like a proceeding, and if there is any questions, so I am ready for that sir. Sir, over to you sir. Gupta sir. Yeah, Bhardwaj sir. जी I request the attending members, if you have any query, then the house is being open for question answer. Please. You can unmute yourself to ask the question, or you can write in the chat box. Both the options are available. जगजीत सर, जी विनोद जी प्लीज। सर आईसीडीएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे आपने टैक्स ऑडिट की बात करी, तो वहां पे फिर आईसीडीएस ही प्रिवेल करेंगे या फिर बुक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और टैक्स ऑडिट आईसीडीएस के हिसाब से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर विनोद जी, थैंक यू कि आपने इतना रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि जहां पर आईसीडीएस आ जाए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए तो आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं अगर इनकम टैक्स से देखूं तो इनकम टैक्स के हिसाब से आईसीडीएस वो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है। बट इफ देयर इज एनी मटेरियल फैक्टर, वो मटेरियल आइटम को आपने देखना है, मटेरियलिटी क्या है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ पे एप्लीकेबल होने, जहाँ पे मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल आइटम का डिस्क्लोजर देना है।
कहीं पर आपकी रिपोर्ट, और दूसरी बात अगर दोनों चीजें सर इंपॉर्टेंट है सर विनोद सर, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों चीजों को प्रॉपरली उसमें डिस्क्लोजर में एक्सप्लेन करना है या उसको मेंशन करना है, ताकि आईसीडीएस के भी कंप्लायंसेस हो जाए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी। बट अगर आपको लगता है नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्यादा मटेरियल है और वो उसमें कवर्ड हो रहा है, ऑलरेडी इंक्लूडेड आईसीडीएस डिस्क्लोजर, तो फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है। बट वो डिपेंड करता है सर आप कहाँ पे स्टक होते हैं और क्या मटेरियलिटी आपके सामने डिटेक्ट होती है जब आप टैक्स ऑडिट बनाए या रिपोर्ट फाइल करें। सर सर इसी में एक पॉइंट और ऐड करना था, मतलब एक और क्वेरी थी, जनरल क्वेरी है थोड़ा सा इससे हटके। जी 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 फॉर एग्जांपल कोई एसएमई अपना जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है स्टॉक का, वो मतलब एक साल उसने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो किया जी और दूसरे साल उसने वो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो किया, तो इसमें ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोजर जाएगा कि कंपनी रैपिडली हर ईयर अपना मेथड चेंज कर रही है स्टॉक वैल्यूएशन का? जाएगा क्या जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से तो आपको डिस्क्लोजर देना ही इफ देयर इज एनी डेविएशन, और 3CD बनाएंगे तो 3CD में भी आता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन में इफ देयर इज एनी डेविएशन तो वो भी आपको 3CD में भी रिपोर्ट करना है। और सर ये मटेरियल आइटम भी हो सकता है, क्योंकि होता क्या बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है अपने स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। यस यस सर। तो आपको वो प्रॉपरली उसको डिस्क्लोजर में डालना है, क्योंकि अगर आपने उसको डिस्क्लोजर में नहीं डाला, अगर आपने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं कंप्लीट की अपने एंगल से, क्योंकि सामने वाला पर्सन तो देखिए, सामने मान लीजिए मैं एज ए इन्वेस्टर बैठा हूं, भारद्वाज सर एज ए इन्वेस्टर बैठे मार्केट में, और आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट को फाइनल किया और उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके जो स्टॉक्स है उसको भी सर्टिफाई किया, और बाद में हमें पता चलता है नहीं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, कि आपने उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर वे में नहीं मेंशन किया, क्योंकि कंपनी जो है अपने इसके जो वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं उसको बार बार चेंज कर रही है, just to misguide, just to mislead the person, the investor, the government department, the bankers। होता है कई बार, हमें पता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, सीसी लिमिट लेते हैं, ओडी लिमिट लेते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होते हैं, जब भी बैंक मंथली आपसे कॉल करता है, एंटिटी से कॉल करता है कि सर आप अपने डेटर्स और अपनी स्टॉक की स्टेटमेंट दीजिए, तो एंटिटी कई बार चेंज करती रहती है इन चीजों को, बट जब आप अटेस्ट कर रहे हैं सो देन देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसको प्रॉपर्ली मेंशन करना। सर थैंक यू सर। जी जी विनोद जी। एनी मोर क्वेश्चंस? गुप्ता जी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन सर? चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन? नो। क्योंकि जनरली होता क्या भारद्वाज सर, अभी ये चीजें जो नई हैं, जैसे नेटवर्किंग न्यू है, जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द एसएमई न्यू है, अभी हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने इसको स्टडी भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जब हम इसे स्टडी करेंगे तब क्वेश्चन आंसर सर आने की उम्मीद हो जाती है। सो मेरी तरफ से एक ऑलवेज आई एम अवेलेबल फॉर यू, कि कभी भी फ्यूचर में आपको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड या एसएमई से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप भारद्वाज सर से या गुप्ता सर से मेरा नंबर ले सकते हैं और डायरेक्टली यू कैन टॉक टू मी सर। So I hope there are no more questions. Sir, we are Gupta ji. हाँ जी हाँ जी। Any question from your side, sir? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड है FRRB, इसने ना एक पब्लिकेशन छापा था, कॉमन एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो आपने कवर कर लिया इसमें? आई होप यू हैव कवर्ड इट। यस सर, मोस्ट ऑफ द पॉइंट। Okay, you have taken care. Okay, I have got a presentation on the same। अगर किसी मेंबर को वो वाली प्रेजेंटेशन भी चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर दूं, क्योंकि उसमें ना उन्होंने क्या किया है, आइटम वाइज लिया है उसको, कि भाई कहाँ वो उन्होंने क्या किया, पुरानी बैलेंस शीटें उठाई कंपनियों की, और पुरानी बैलेंस शीटें उठाए, कहाँ जहां गलतियां थी ना उनको कंपाइल किया, कि भाई देखो ये पॉइंट पे इन्होंने ये किया, करना ये चाहिए था इस तरह से। वो बहुत ही बढ़िया पब्लिकेशन है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी है वो, और अगर किसी को चाहिए तो मैं वो उसको भी भेज दूंगा, किसी को इंटरेस्ट अगर पढ़ने में तो वो भी शेयर हो जाए।
सतीश सर, जी मुझे है सर, मैंने- जगजीत जी, सतीश जी आए हैं नहीं क्या? सतीश जी मुझे दिख नहीं रहे सर, नहीं दिख ओके, रहे। माइट बी समवेयर बिजी, ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं। वो उस समय सर जो मैंने एमसीए के नोटिफिकेशन की जो बात की थी ना, जून 2021 वाला नोटिफिकेशन, तो हाँ, उसमें हाँ। जो एनेक्शर वाला पार्ट था, उस एनेक्शर वाले पार्ट में वो डेविएशन की बात मैंने की थी, जो ओके, एमसीए की तरफ से वो चीजें फाइंड आउट हुई हैं कि जो एरर्स आई हैं या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो वहां पर उन्होंने रिक्वायरमेंट में एनेक्शर में दे दिया वो चीजें। जी सर। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। जी जी। तो स्वप्ना कश्यप जी मैं हमारे बीच में है। स्वप्ना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस डेलिब्रेशन के बारे में या प्रोग्राम के बारे में? स्वप्ना कश्यप जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं और बोल सकती हैं अगर कुछ बोलना चाहें तो। ओके, तो भारद्वाज जी, Yes, sir. but before we wind up today's meeting, I would like to tell you that there is another program on 31st of this August that will be taken by CA Gaurav Garg ji. So that is another program, and you log into that program also. वो भी program अच्छा रहने वाला है हमारा 31st को. नेचुरली गौरव जी बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, ट्रांसफर प्राइसिंग पे, तो वही हमारा टॉपिक रहेगा. और यू कम विद योर क्वेरीज ऑन 31st ऑल्सो. टाइमिंग विल बी सेम 4 PM to 6 PM. ही इज अ वेरी गुड स्पीकर सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ गौरव जी, मैंने सुना है हाँ कई बार, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आप भी अच्छा बोलते हो. और आप जो है, मैंने आपको 2-4 साल पहले भी सुना था, लेकिन अब आपके डेलिब्रेशन में बहुत फर्क आ गया, जमीन आसमान का फर्क आ गया. मतलब जितनी मेच्योरिटी से और जितने कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो ना चीजों को, तो ऐसा लगता है कि आपने खुद हैंडल की हुई है जैसे. जी जी, ये सब जो गाइडेंस और ब्लेसिंग आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सतीश जी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आपसे सीखी हैं, उसके अलावा और भी कई सीनियर है जैसे भारद्वाज जी हैं. सो वी हैव लर्न so many, we have learned a lot, so हाँ many जी, things from the senior with the gracing. Yeah, with और मुझे blessing. ऐसा लगता है कि आप स्टडी भी करते हैं. जितने इस बारी जूम की हेल्प से या डिजिटली इतने स्पीकर बनकर नहीं, एनआईआरसी में वो तो पहुंच खैर गए. देखो, जीएसटी ने भी बड़ा रोल प्ले किया. जीएसटी की वजह जी से जी नए स्पीकर आए, क्योंकि उन्होंने जी इस जी फील्ड को ये समझा कि ये नया अपकमिंग फील्ड है, एक अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है. तो उस वजह से काफी नए स्पीकर डेवलप हुए जो पहले नहीं थे जीएसटी आने से पहले. क्योंकि जीएसटी जी. तो बहुत रिसेंट फिनोमेना है, तो लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह ग्रैब किया कि भाई चलो इसको स्टडी करते हैं, हो सकता है इसमें कुछ कमाई हो जाए. लेकिन बाकी भारद्वाज जी बताएंगे इंसॉल्वेंसी के बारे में. भारद्वाज जी, इंसॉल्वेंसी के बारे में 2 मिनट बताइए मेंबर्स को कि क्या वहां उसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, और हमारे मेंबर्स को नए फील्ड्स की जरूरत भी है. देखिए 2016 की बात है, हम लोग सुबह पार्क जाते हैं डेली, गुप्ता जी और हम साथ ही जाते हैं, 1-2 और हमारे दोस्त हैं, और हमने कुछ इस तरह का प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर पार्क कोई या तो छुट्टी मांगेगा, एक पैनल है हमारा, उससे छुट्टी मांग के पहले छुट्टी लेगा, अगर छुट्टी नहीं लेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है. तो हम लोग बहुत सिंसियरली सारे लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी आदमी मतलब मिस नहीं करे, छुट्टी नहीं करते. तो एक दिन गुप्ता जी का फोन आया कि भाई मैं कल, मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं कल पार्क नहीं आऊंगा, मैं जो है ना वो इंसॉल्वेंसी की कोई एग्जाम आया है, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम, उसकी क्लासेस मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मेरे को छुट्टी दे दीजिए. तो हम लोग और भी 2-3 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हमने कहा भाई गुप्ता जी जब छुट्टी लेके जा रहे हैं तो हम भी छुट्टी कर लेते हैं, लेट अस ज्वाइन द क्लास. तो वो दिन था, पहला दिन था, और हमने क्लासेस ज्वाइन करी. गुप्ता जी ने फ्री क्लासेस थी वो, मेरे ख्याल से 50 रुपए या कुछ ऐसे नॉमिनल चार्ज, जो चाय पानी का खर्चा था. अदरवाइज सभी स्पीकर्स को इन्होंने 20-25 दिन तक वो क्लासेस चली और सारा सिलेबस इन्होंने कवर कराया. उससे पहले हमें इंसॉल्वेंसी, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम के बारे में कुछ भी एबीसी भी नहीं पता थी. वो दिन है और आज का दिन है, मेरे ख्याल से गुप्ता जी की गाइडेंस में लगभग 100 लोग तो क्वालिफाई कर चुके होंगे सर. 300 हो चुके सर, 300 हो चुके. देखिए 2018 से अगर हम काउंट करें 300 लोग हो चुके. तो उसके बाद एग्जाम जैसे हमने क्लियर किया, 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, थोड़ा सा इतना ज्यादा इजी भी नहीं है. 50 नंबर तो तकरीबन सब लोगों के आ जाते हैं जो भी अटेम्प्ट करता है, लेकिन जो 50 से 60 या 65 तक जाना है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा काफी मतलब मेहनत करनी पड़ती है. 55 से ऊपर बढ़ना मतलब बिना पढ़े बिना नहीं हो सकता. हमारे टाइम में थोड़ा इजी था क्योंकि केस लॉज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 20-30 क्वेश्चन 20 नंबर का. आजकल केस लॉज काफी हो गए हैं,
तो अभी थोड़ा सा आपको सिलेबस ज्यादा कवरेज करनी पड़ेगी, जो केस लॉज, जो भी डिसाइडेड केस लॉज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद ये आज की डेट में जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको विद सीए प्रैक्टिस करने की, बट इट अपीयर्स इट इज ए होल टाइम जॉब। हम लोग धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहे हैं, जो लोग जाना चाहते हैं उनको हाथ जोड़ रहे हैं, भाई अपनी फाइलें ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग फीस कटिंग की बात करते हैं उनको मैं हाथ जोड़ देता हूँ, भाई साहब मैं टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, आप अगर ले जाना चाहें तो आप फाइल ले जा सकते हैं, और अड़ोस पड़ोस में एक आधी फाइल और भी दे दूं, अगर आपके सीए के पास काम कम हो तो उसका बेचारे का गुजारा चल जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारी टीम है, हम 3-4 लोग हैं, हमारे पास लगभग आज की डेट में वी आर हैंडलिंग अराउंड 10 केसेस इन इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। बहुत जबरदस्त काम है सर। हम जैसे हमारा जो ये एक सिस्टम रहता है ना कि कल कर लेंगे यार, आज कर लेंगे यार, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। सारी एक्टिविटी बिल्कुल टाइम बाउंड है। आज को आज मेल भेजनी है, आज जवाब देना है तो आज देना ही है आपको। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। 3 मॉनिटरिंग एजेंसी आपके पास है। काम बहुत जबरदस्त है बट चैलेंजिंग है। आपको मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। जो लोग ढीले हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो जिनका एटीट्यूड ये रहता है यार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, उनको तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर फॉलो कर सकते हैं, शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंसियर और पंक्चुअल हैं, और थोड़ा सा बोल्ड भी आपको होना पड़ेगा, जो कमजोर दिल आदमियों का काम नहीं है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है, कंपनी को टेक ओवर करते हैं, 200 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, जो आदमी सीट के उसने बड़ा किया उस कंपनी को, और उसको जाके आपको पहले ही दिन सीट से हटा के बोलना है सर यू प्लीज कम ऑन दिस साइड, नाउ वी शैल सिट ऑन योर सीट। और नीचे जो मर्सिडीज खड़ी है चाबी रख जाना सर, आपको ऑटो में जाना पड़ेगा, वो गाड़ी आपकी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो मतलब कमजोर आदमी नहीं कर सकता, उनके दिल पिघल जाते हैं और वो दे आर नॉट मच सक्सेसफुल। तो आपको थोड़ा रफ एंड टफ भी होना पड़ेगा, कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, अगर आप ठीक से काम करते हो और मेहनत करते हो तो पैसा भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मतलब आप अगर शिफ्ट करने का भी प्रोविजन रखते हो, ट्रांजिशन फेज में थोड़े बहुत दिन दिक्कत हो सकती है। शुरू में लोगों के पास इनिशियल स्टेज पे हल्का सा इश्यू ये रहता है भी काम कहाँ से आए, कैसे जनरेट हो, कोर्ट से आएगा, खुद जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टीम है, टीम वर्क है, एक आदमी का काम नहीं है, एटलीस्ट 4-5 आदमी चाहिए बहुत सॉलिड कमिटमेंट के साथ, जब भी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। चाहे आप कोई एंटिटी बना के काम करें या वैसे आपस में कोई मेमोरेंडम साइन करके आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, भाई सभी केसेस मिलकर इकट्ठे करेंगे। और पढ़ना बहुत जरूरी, जो बहुत जरूर पड़ेगा, डेली अमेंडमेंट्स रेगुलेशंस में डेली चेंजेस होती हैं, तो यू हैव टू फॉलो द थिंग्स। अगर कुछ लोग मेरे साथी अगर शिफ्ट करना चाहें तो वी कैन प्रोवाइड आवर फीडबैक एंड गाइडेंस कि भाई शुरू में ट्रांजिशन फेज में थोड़े से दिन दिक्कत रहेगी, आपको दोनों चीजें साथ चलानी पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली 3-4 साल आपने काम कर लिया तो शायद आप ये सोचेंगे कि यार सीए का ऑफिस का काम जो है वो किसी बच्चे को असाइन कर दूं या किसी को दे दूं, उसका भी गुजारा हो जाएगा। एंड वी शुड कंसंट्रेट फुल्ली ऑन दिस इंसॉल्वेंसी वर्क। तो यही मेरा मतलब ब्रीफ समरी है कि भाई अगर आप लोगों में से कुछ लोग एग्जाम पास करना चाहें तो हमारे फाउंडर कन्वीनर गुप्ता जी बैठे हैं, पूरा सिलेबस, पूरे लेक्चर्स हर तरीके से हेल्प करने के लिए। वैल्यूअर्स का भी वो करा रहे हैं और लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम भी करा रहे हैं। सब तरह की हेल्प अवेलेबल है। पास करने के लिए गुप्ता जी तक रहिए और उसके बाद फिर आगे काम करने के लिए मेरे पास आ जाइए। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू इन ऑल डायरेक्शंस। Excellent, sir. Excellent. थैंक यू भारद्वाज जी फॉर दिस वंडरफुल डेलिब्रेशन। उसके लिए हमारा ना एक बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है या आपकी नॉलेज में कोई है तो उनको मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है क्लासेस अटेंड करने के लिए तो हमने 70 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स कंपाइल किए हुए हैं, वो हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। एक फाइल है, उस फाइल में लिंक दिए हुए सारे टॉपिक के साथ लिंक दिया हुआ, तो वो आप सुन सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप एक्चुअल ऑनलाइन लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो उसमें ये 1 महीने वो सिलेबस चलता है हमारा, और 1 महीने में हम पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं। रोज शाम को मीटिंग होती है 7 से 8, चाहे संडे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। मदर डेयरी की तरह काम करते हैं। So thank you very much. Thank you all. Thank you, Jagjit ji. It was really wonderful. Thank you. And we really enjoyed the session. Thank you, sir. Thank you, Bharadwaj ji. Bharadwaj Thank ji. you, Gupta sir. सर
we shall take your permission to upload this recording of this presentation on our YouTube channel of the study circle, so that our friends who have not attended the program may take benefit of this deliberation or discussion. So we want your kind permission so that it may be uploaded on the YouTube channel of Srinagar Keshubram CP Study. We are thankful to you for sparing your valuable time for guiding our members. And I am also thankful to all the members for participation in this program. And for the speaker, best of luck to you. May God fulfill all your desires and your success in your future endeavor. Thank you. Thank you, sir. Thank you Permission for of the And there is another program on 31st also. So you keep attending all our programs. There is another Yes, yes. program on 31st from 4 to 6 p.m. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. With the Thank permission you. of all, I would like to end the meeting formally. Thank you very much, everybody.